Okay, anybody has question, just raise your hand. Otherwise, silent like always. I'll consider it as no questions, no doubts. Everybody is doing fine. Okay. Okay. So last time around, we've seen how to connect to AWS cloud, right? And creating an instance. So the whole concept remains the same. Today we'll see that similar thing on the GCP, how to create an instance and then how to connect to the instance. So concept remains the same. The only difference, I mean, there will be differences, right, from the UI perspective, and that's what I like to call steps. So the steps which you had followed for the AWS, which will look little different, but they will be doing the same thing. This we followed the step on the virtual machine, for the virtual box, and we also followed and we followed few steps on the AWS cloud. Who's unmute? Please, everyone mute yourself so it doesn't create a lot of disturbance. So steps will differ, steps will be different, but conceptually things going to be the same, right? Here also we will be creating the instance, and we may have to choose or go through the host of a page which will simply going to fill the form. जैसा हमने AWS पे सारा fill किया था. If you guys remember, हमने I had listed down, right? जो थे सारे मैंने list down कर दिए थे. So let me get that. भूषणचा भावा दोस्त आणला ना. Who's Bhushan? Can you please mute yourself? I mean, I tried muting you like 4 or 5 times. You are keep on unmuting. Okay, I'll keep it here. If you remember, this is what we did, right? हमने जब AWS पे इंस्टेंस बनाया था तो ये सारे हमारे फील्ड्स थे which जो हमने फॉर्म पे फिल किया था. ओके फाइन. सो हमने ये सारे फील्ड्स चूज किए थे, राइट? अगर तुमको रिकॉल करो तो AWS पे इंस्टेंस इस तरह से बनाया जाएगा और यहाँ पर भी प्रीटी मच सेम थिंग ही चूज करना है, बट डिफरेंट लुक होगा, डिफरेंट वे में वो दिखेगा. एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, क्योंकि आगे जाके हम लोग विल यूज अ कॉमन सॉल्यूशंस. अभी क्या हो रहा है कि दीज आर हम लोग क्लाउड का जो है एक जो टर्म चलता है क्लाउड में, दैट इज क्लाउड नेटिव, क्लाउड एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक का मतलब एग्नोस्टिक, जो अगर तुमको पता होगा एथीएस्ट जो ही डजंट बिलीव इन एनी गॉड. एग्नोस्टिक्स in a literal term is like he believe in some power but he doesn't believe in people who believe in God. Like there are so many religions, so he don't associate himself to any particular religion, but he gives the credit to, okay, there is some superpower. So that is the agnostic. Atheist is like nobody is there in the world, everything is time bound and time has created the world and time will destroy the world as well. So people evolved, there was one ape, and then whatever the water was there, and people how evolved through the time. So that is atheist. And agnostic एक term है, तो उसी वो एक term borrow किया गया है यहाँ पर agnostic का, which similar concept है, लेकिन यहाँ पे the only thing is कि there will be set of tools और instructions जो हम लोग use करेंगे, that will not associate, वो अपने आप को किसी cloud से associate नहीं करेंगे. वो लोग cloud atheist बोल सकते थे, मतलब जो कि cloud में believe ही नहीं करेगा, because general term atheist is like he's not believing in anyone. But agnostic is believing in someone but not associating himself to anyone, him or herself. तो क्लाउड एग्नोस्टिक टूल का भी वही है, टूल है जो क्लाउड पे ही काम करेगा, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी द टूल. किसी के साथ में वो ये नहीं रहेगा, राइट? तो
दैट इज अ लिटिल बिट इंग्लिश फॉर यू, फॉर पीपल जिनको अगर नहीं पता था कि एग्नोस्टिक एथियस्ट वर्ड क्या है। एंड नेटिव इज लाइक जो नेटिव है उसका, जो मतलब उस क्लाउड पे ही काम करने वाला है, उसके अलावा वो दूसरी जगह काम नहीं करेगा। तो जो हमने फॉर्म भरा था एडब्ल्यूएस पे, वो एडब्ल्यूएस पे ही वो फॉर्म के फील्ड आने वाले, वो और कहीं पे नहीं मिलने वाला तुमको। तो वो वाला जो मेथड था और स्टेप्स था, दैट इज नेटिव। ठीक है, और लिनक्स पे भी ये वर्ड बार बार यूज होगा, नेटिव यूजर, नेटिव यूजर। तो अभी तो तुमको नहीं समझेगा व्हाट इज नेटिव यूजर, और अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग है तो शायद समझ जाए। नेटिव यूजर जो ऐसा यूजर जो सिर्फ उसी सर्वर पे अवेलेबल है, तो वो नेटिव हो गया, मतलब लोकल यूजर हो गया है। तो क्लाउड लोकल भी बोल सकते हैं, बट द टर्म जो मार्केट में यूज होता है और इंडस्ट्री में पीपल यूजेस, क्लाउड नेटिव एंड क्लाउड एग्नोस्टिक। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड एग्नोस्टिक टूल्स यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो POSIX जो है सिमिलर कंसेप्ट है, राइट? सो आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज द POSIX। सो क्लाउड एग्नोस्टिक भी वही आइडिया है कि एक टूल ही बनाया जाए रादर देन क्रिएटिंग सो मेनी टूल्स, बिकॉज एक इंसान कितना टूल सीखेगा, राइट? तो तो कितने टूल्स मतलब एक इंसान सीखेगा? तो ऐसे टूल्स है मार्केट में, हिट हुआ है। एंड अगेन दीज आर द आइडियाज, जब हम लोग वो टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे विल सी दैट। सो आगे हम लोग ऐसे तरीके से करेंगे, कुछ क्लाउड एग्नोस्टिक वे में चीजें किया जाएगा, तो दैट कि वो किसी भी क्लाउड पे नहीं है, तुम अगर उसको समझ लो, और वो सब क्लाउड पे वैसे ही काम करेगा। तो जस्ट वन टूल टू वर्क ऑन ऑल द अदर क्लाउड्स। और ऐसे मार्केट में जो टूल्स हैं ज्यादा फेमस भी हो रहे हैं आजकल। तो ये क्लाउड नेटिव वे में वी सीन हाउ टू क्रिएट द इंस्टेंस। एंड और इसका जो कंसेप्ट था SSH वाला, इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द सर्वर, दैट AWS विल क्रिएट, AWS क्या करेगा, पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करके देगा हमको, ठीक है? एंड देन हम हमको प्राइवेट की मिल जाएगी, यूजिंग दैट प्राइवेट की वी विल कनेक्ट। हियर दैट इज नॉट द केस। आई मीन यहाँ पे दो वे में ऑथेंटिकेशन होता है GCP पे। जो हम लोग है, हम लोग जो कंसेप्चुअल वाला है ना, उसको पहले समझेंगे, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड देन देयर इज अ इजी वे, इजियर देन द AWS ने एक इजी किया ना, कि अगर किसी को SSH की कैसे जनरेट करना नहीं आता, तो मैं करके दे रहा हूँ तुमको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। सिर्फ मैं तुमको की भी दे रहा हूँ, कमांड भी दे रहा हूँ, तुम बस यूज करो, कनेक्ट करो, ठीक है? एंड AWS में भी आ गया है वो जो क्लाउड शेल हम लोग यूज कर रहे हैं, इट्स अ सिमिलर, जो गूगल से आया हुआ कंसेप्ट है वो। व्हेन जब जब गूगल आया था, तो गूगल क्लाउड जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेकर आया था, विल सी दोस हिस्ट्री ऑफ द क्लाउड एज वेल, क्लाउड वाले लेसन में। तो उस टाइम पे गूगल का ही था ये जो क्लाउड वाला शेल था। बाकी सबका ऐसा था कि तुम कोई दूसरा क्लाइंट यूज करो, कोई क्लाइंट नहीं देता था। गूगल क्या करता है, क्लाइंट भी दे देता है। तुम्हारे पास ब्राउजर है तो यू डोंट नीड अ क्लाइंट, मिल जाता है। आज AWS में भी अवेलेबल है, और अब Azure में भी अवेलेबल है, और सारे क्लाउड वाले लेकर आ रहे हैं। तो कंसेप्ट जो गूगल ने लेकर आया था कि यू डोंट नीड अ क्लाइंट, अभी हमको क्लाइंट यूज करना पड़ता है सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए, राइट? तो AWS का ऐसा था कि तुमको की तो दे, AWS तुमको SSH की दे रहा है, बट यू स्टिल नीड द क्लाइंट टू यूज दैट टू कनेक्ट। एंड वो क्लाइंट जो हम लोग यूज करते हैं, पुटी चैन हो गया, मोबा एक्सटर्म हो गया, सिगविन हो गया, तो ये सारे अलग अलग है विच वी आर यूजिंग एज अ क्लाइंट टूल्स, राइट? तो यहाँ पर क्लाइंट ऑलरेडी था, तो वो भी हम लोग देखेंगे, बट हम लोग कंसेप्चुअल जाएंगे वापस से, बिकॉज विल ट्राई टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग। एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे चीजें थी लास्ट टाइम पे भी, इफ यू कैन रिकॉल, कि दैट विल ऑल रिमेन्स हियर, राइट? तो वी वर वन, हमारा खुद का एक नेटवर्क है, एंड देन इन आवर नेटवर्क, लेट मी गेट दिस समवेयर हियर, अच्छी जगह ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है बाय CSP, ये क्लाउड नेटवर्क है। we'll have some kind of this and that. और नेट के पास अपना पब्लिक IP होगा, राइट? दैट्स द वे वी कनेक्ट। मतलब जब हम लोग, हमारे इस ISP पब्लिक IP रहेगा यहाँ पर हमारा। एंड जो कमांड्स है मैंने बता दिया था, 2-3 कमांड्स, एंड विल सी दिस क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बिकॉज हम ऐसा सेटअप, बाय द टाइम वी डू द सेटअप ऑफ द VPN, जहाँ पे एक टनल वनल बन के क्लाउड पे कनेक्ट होगा, दैट इज वो बहुत दूर है। तो वो करने से पहले हम लोग ज्यादातर जो है इंटरैक्ट रहेगा फॉर लर्निंग अदर टूल्स वुड बी दिस वे, कि एवरी टाइम हम लोग यहाँ पर लैपटॉप में, हमारा लैपटॉप यहाँ पर है, तो
यहाँ पे तो प्राइवेट आईपी रहेगा, विल हैव सम काइंड ऑफ अ प्राइवेट आईपी, और कोई हम लोग क्लाइंट यूज करेंगे, एंड द कंसेप्ट सेम रहेगा कि विल नीड द प्राइवेट की हियर, और जब हम यहाँ पे सर्वर बनाएंगे तो विल नीड द सर्वर, यहाँ पे पब्लिक की चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन, और वो पब्लिक की कहाँ पर चाहिए, ऑथराइज कीज में चाहिए। तो कंसेप्चुअली यू नो दोस्त थिंग। अभी यहाँ पर गूगल के पास ऐसा है, गूगल जब सर्वर बनाएंगे तो गूगल बोलता है कि मुझे सिर्फ दे दो पब्लिक की तुम्हारी, मैं जाके उस पब्लिक की दे दो, कौन सा यूजर का बनाना है तुमको, यूजर का नाम मुझे बता दो, मैं जाके वहाँ पे यूजर भी बना दूंगा और पब्लिक की उसके अंदर इंजेक्ट, तो वो दोनों काम कर देगा तुम्हारा। ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर रहेगा, इसके अंदर में पब्लिक की जाएगी। पब्लिक की का जो लोकेशन है पता रहना चाहिए कि यूजर के होम डायरेक्टरी में .ssh में ऑथर कीज में जाता है, राइट। तो एवरी टाइम इट विल बी योर होम यूजर नेम .ssh ऑथराइज कीज। तो यहाँ पे गूगल को हमको क्या देना है, वी हैव टू सप्लाई द पब्लिक की एंड द यूजर नेम दैट वी नीड टू क्रिएट, और गूगल जाके वो यूजर सेटअप करेगा हमारे लिए, और उस यूजर में जाके ऑथराइज कीज में पब्लिक की इंजेक्ट कर देगा। एंड तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यू नीड टू गो एंड वॉच द वीडियोस और प्रैक्टिस द, अगर तुम लोग ने अटेंड किए लास्ट के लेक्चर्स एंड स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो यू रियली नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है। एंड द वे हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको बाय सिंपली अटैचिंग द पब्लिक आईपी अगेन हियर, क्योंकि दैट इज आल्सो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क, तो ये भी हमारा पब्लिक आईपी रहेगा। इट्स नॉट द आइडियल वे टू डू दैट, बट हम लोग यही तरीके से अभी करेंगे फॉर नाउ। ठीक है। तो ये यहाँ से पब्लिक आईपी दे विल बी एबल टू कनेक्ट, बट इन बिटवीन क्या रहेगा, फायरवॉल रहेगा यहाँ पर क्लाउड का, जो हमको ब्लॉक करेगा। तो विल नीड द फायरवॉल रूल, यहाँ पर हमको फायरवॉल रूल चाहिए, एंड उसके बाद में हमारा सर्वर बनेगा। सर्वर में इफ यू हमको 3 रिसोर्स चाहिए, वी नीड कंप्यूट, वी नीड स्टोरेज, एंड वी नीड निक। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन रिकॉल इफ यू नॉट डूइंग प्रैक्टिस, एंड जो तो करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने के लिए भी, और इसका रिलेशन भी आगे विल सी देयर हाउ रिलेटेड। तो एवरी टाइम यू क्रिएट, यू नो, तुमको जब रिसोर्स बनाओगे तो यू गोना नीड ऑल दिस। लेट्स गो एंड क्रिएट दैट, लेट्स हैव अ, हम लोग देखते हैं कि हाउ गूगल कैसा लगता है। तो ये मेरा अकाउंट है गूगल का, तो सिमिलर टू AWS अकाउंट, दिस इज द डैशबोर्ड। तो गूगल जो है इट्स फॉर, गूगल मतलब ऐसा है कि इसकी सर्विसेज बहुत रोबस्ट है। गूगल तुम अभी देखोगे तो इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, सब ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा, उतना कलरफुल नहीं रहेगा। व्हेन वी, मैं आजोर पे दिखाऊंगा तो आजोर पे देखना एकदम कलर टीवी रहता है, एकदम ग्राफिक्स डाल डाल के वो उसका परफॉर्मेंस स्लो कर देता है, एटलीस्ट यूआई का, बट आजोर इज आल्सो गुड इनफ। और AWS पे भी जब तुमने देखा होगा तो अच्छा ग्राफिकल रहता है, चीजें एनिमेशन यहाँ से वहाँ होती रहती है। GCP ऐसी सादी सुदी रहता है, क्योंकि गूगल इज मोर फॉर द टेक्निकल पीपल, और उसने ज्यादा टेक्निकल चीजों को इनहांस किया है रादर देन मेकिंग इट वेरी इजी। और चीजें तो ऐसी रहती है कि यहाँ पे तुमको समझेगा भी नहीं जाना कहाँ पर। ठीक है। तो सिमिलर टू, इफ यू रिमेम्बर, AWS पे हमने क्या किया था, हमने सर्विस लिया था, राइट। हमने वहाँ पे गया था सर्विस पे, और वो जो सर्विस थी हमारी कंप्यूट के लिए, जो वहाँ पर AWS की सर्विस है, वी कॉल दिस EC2। यहाँ पे जो सर्विस है उसको GCE बोला जाता है, गूगल कंप्यूट इंजन। एंड इफ यू डोंट नो द फुल फॉर्म, मैंने लास्ट टाइम पे तो बोला था, देख लेना, बट इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। दोनों में कंप्यूट कंप्यूट वर्ड है, बिकॉज इट्स एक्चुअली डूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारे रिसोर्स जो हम लोग क्रिएट करेंगे इट विल बी सम काइंड ऑफ अ कंप्यूटेशन, सब कंप्यूट पे रहेगा। एंड तो उसका नाम सेम चीज है, सेम फंक्शनैलिटी है, अलग अलग नाम किया हुआ है, और अलग थोड़ा आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, बट कोर फंक्शनैलिटी सब वही दे रहे हैं। आई कैन यूज माई वेबसाइट, अगर मुझे कोई रन करना है तो आई कैन यूज दैट ऑन AWS, आई कैन यूज दैट गूगल, एंड एवरीवेयर इट विल वर्क जस्ट फाइन, राइट। सो वो इसलिए करेगा बिकॉज सारी जो चीजें हैं वो सेम सेम है हर जगह पे। ठीक है। तो ये यहाँ पर है, और गूगल पर जो सर्विसेज तुमको देखना है, तो गूगल का हमेशा से ऐसी आदत है कि कहीं पे भी एक डॉट क्लिक करो और ऐसा बंच ऑफ सर्विसेज आना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, तो दिस इज नेविगेशन मेन्यू, जिसको हैमबर्गर साइन भी बोला जाता है, क्योंकि बर्गर जैसा ये है, तो हैमबर्गर सा बोला जाता है इसको, साइन लाइक दैट। और इसके अंदर में यहाँ पे उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैंने पिन करके रखा हुआ, तो लेट मी अनपिन दैट इफ यू डोंट सी व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे सारे सर्विस की कैटेगरीज है। ये कंप्यूट सर्विसेज है, यहाँ पर सारे जो कंप्यूट के गूगल के पास में जो जो है, कुबरनेटिस, वीएमवेयर इंजन और कंप्यूट इंजन, सर्वरलेस स्टोरेज, डेटाबेसेस, ठीक है। तो फॉर नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली कंप्यूट इंजन, बिकॉज दैट्स व्हाट यहीं पे हमको हमारा सर्वर मिलेगा। मैं इसको पिन कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज सर्विस, तो आई डोंट नीड टू बार बार नीचे आने की जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली यूज इट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अब कोई भी सर्विस जो नीचे होगी, नेटवर्क वाली कोई सर्विस होगी, तो वो बार बार स्क्रॉल डाउन करने की आई कैन सिंपली पिन इट हियर, या फिर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। सो सेम वे है, लेकिन दे आर सेलिंग थोड़ा डिफरेंस बना के किया हुआ है। तो इट्स जस्ट अ यूआई डिफरेंस, एक बार तुमको यूआई का समझ में आ गया तो आसानी से चीजें भी समझ में आ जाएगी। और AWS में जो रिसोर्स जो हमारा होस्ट करता है, मतलब दैट इज इन AWS अकाउंट में रिसोर्स हमारा, जो ये जो हमारा EC2 रहेगा इन AWS, दैट विल बी इन योर अकाउंट, ठीक है। इन GCP ये तुम्हारा प्रोजेक्ट में चले जाता है। तो ये क्या कर रहा है, एक कंटेनर है जहां से तुम्हारा बिलिंग विलिंग सब कुछ होता है। विल सी दिस इन डिटेल, रिसोर्स हायरार्की और सारी चीजें। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस, यू नीड टू हैव द AWS अकाउंट, और वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा अकाउंट बन जाता है। व्हेन यू क्रिएट द फ्री टियर अकाउंट जब बनाते हो, तो वो एक तुम्हारा अकाउंट बन जाता है। व्हेन यू क्रिएट द गूगल अकाउंट, तुम्हारे पास में एक प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इस तरह से आएगा, मैंने इसको रीनेम कर दिया हूँ। और यू कैन क्रिएट more projects, you can create more accounts to share, so that we will see in detail later in the cloud lectures. To create the instance, we'll simply click on this create instance, and it starts from here. अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, इफ यू कंपेयर दिस, राइट। यहाँ पे क्या था, AWS का इफ यू रिमेम्बर, हमने लेबल्स में नेम लगाया था यहाँ पर, राइट। हमने नेम इक्वल टू उसका जो भी नेम था, नेम देना था, हमने नेम दे दिया था ऐप सर्वर 01 लाइक दिस। ऐसा दिया था या कुछ दूसरा दिया था, अभी मुझे याद नहीं है, बट हमने लेबल में टैग में, उसके टैग में हमने नेम लगाया था, ठीक है। तो ये जो नेम, सो देयर आर टू थिंग्स, एक तो नेम जो तुम्हारे यूआई पे दिखाई देगा, एंड अनदर नेम व्हेन यू लॉग इन टू द सर्वर व्हिच इज योर होस्ट नेम, ठीक है। जब सर्वर पे हम लोग SSH करते हैं, तो AWS पे इफ यू रिमेम्बर ऐसा रहता है, यूजर नेम @IP, और उसके बाद में जो भी उसका IP रहेगा ना, पब्लिक IP या प्राइवेट IP, वो इस तरीके से डाल देता है, 16-1-1, राइट। तो ये उसका होस्ट नेम, वो क्या करता है, होस्ट नेम इस तरीके से बना देता है, जो तुम्हारा प्राइवेट IP रहेगा या पब्लिक IP रहेगा, व्हाटएवर। और आई थिंक प्राइवेट से बनाता है, क्योंकि पब्लिक IP इज ऑप्शनल, प्राइवेट IP इज मस्ट। तो दैट वे, क्योंकि अब मुझे याद नहीं आ रहा था, तो सडनली आई थॉट ओके, जब व्हेन यू क्रिएट इट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वहां तो पब्लिक IP रहेगा नहीं, तो फिर AWS कैनॉट क्रिएट, शुड नॉट क्रिएट दिस विद द पब्लिक IP, वो प्राइवेट से रहेगा, तो दैट वे उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, एवरी टाइम इट कैन क्रिएट। सो ये होस्ट नेम बनाता है AWS में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज नॉट अ डिजायर होस्ट नेम, तुम्हारा जो सर्वर का होस्ट नेम रहना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें जाती है, विल सी दैट एज वेल। जब नेटवर्किंग और DNS वाली बातें करेंगे, देन विल टॉक अबाउट दिस नेमिंग स्कीम्स। नेमिंग कन्वेंशन रहते हैं, ऐसे कुछ भी रैंडमली नाम हम लोग डाल नहीं सकते। ऐप सर्वर जो मैंने डाला हूँ, दैट इज ओके, बट इन जनरल द बेस्ट प्रैक्टिस इज सबका नेमिंग कन्वेंशन रहता है, जिसके उस जस्ट लुकिंग एट द सर्वर तुमको समझ में आएगा ये सर्वर कहाँ पर है, कौन से डेटा सेंटर में है, कौन से रीजन में है, कौन सी टीम यूज कर रही है, कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो वो सारी चीजें आएगी, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द इन्वेंट्री पर्पस एंड ऑल्सो फॉर द बिलिंग पर्पसेस। और भी मतलब सिक्योरिटी के मेजर्स रहते हैं, कंप्लायंसेस रहते हैं, तो वो सारी चीजें बेनिफिट देती है। विल टॉक अबाउट ऑल दोस क्लाउड लेक्चर्स में, एंड जो कि टैग्स में भी आएंगे वो चीजें। तो एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन रहेगा, ठीक है। तो AWS पे कहीं पे वो ऑप्शन नहीं था, तो बाय विच यू कैन डू दैट, देयर इज ऑप्शन, मतलब जो तुम कर सकते हो इज फ्रॉम द यूजर डेटा, क्योंकि यूजर डेटा में यू कैन रन एनी स्क्रिप्ट, राइट। तो तुम यहाँ पे वो रन कर सकते हो जो तुम्हारा ये ओवरराइट कर देगा। दैट्स व्हाट द मोस्ट ऑफ द, दैट्स हाउ नॉर्मली एवरीबॉडी डज दैट, जब जिसको भी होस्ट नेम चेंज करना है। एंड ज्यादातर केसेस में तुमको होस्ट नेम चेंज करना होगा, रादर देन हैविंग ये व्हाटएवर यू वांट टू हैव सम प्रॉपर नेमिंग, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी फॉलो करती है। तो दैट
समथिंग हम लोग होस्ट नेम में से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर AW गूगल पे अगर वी टॉक, तो पहला जो उसने टैब दे दिया हमको दैट इज नेम, और वो नेम क्या कर देगा, वो सीधा जाके उसका होस्ट नेम ही सेट करेगा, ठीक है। तो ये यूआई पे नेम था। AWS में अगर टैग में हम लोग ऐसा टैग लगाते हैं नेम इक्वल टू ये, तो ये यूआई पे नेम रहेगा, और ये जाके मशीन पे नहीं बनेगा, बट ये जो नेम रहेगा इट विल बी ऑन द यूआई एज वेल एज दिस विल बिकम योर होस्ट नेम। तो लेट मी ऐड हियर, नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ एक कुछ नेमिंग कन्वेंशन ले लेता हूँ, एक ऐसा कि मेरा जो नेमिंग कन्वेंशन रहेगा जिसमें मैं सर्वर कहाँ पे बना रहा हूँ मैं वो रीजन ले लूंगा। तो मैं रीजन, और रीजन का भी वहाँ पर AWS में भी रीजन पहले से सेलेक्टेड रहता है, एंड देन वी डोंट हैव टू सेलेक्ट। यहाँ पर ऐसा है कि रीजन हमको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो वहाँ सेम कंसेप्ट हम लोग करेंगे। हम लोग, मैं काम कर लेता हूँ, मैं UW4 ये मेरा रीजन रहेगा, एंड देन मेरा जो भी इन्वायरमेंट रहेगा डेव ऐप 01, ठीक है ऐसा। और ये सेम नेमिंग कन्वेंशन में वहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नेमिंग कन्वेंशन फॉर सर्वर। तो अब इसमें मैंने क्या क्या लिया हूँ, इसमें मैंने रीजन लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट ले लिया हूँ मैंने, उसके बाद में एप्लीकेशन ये लिया हूँ, इंक्रीमेंटल नंबर ले लिया है मैंने कि अगर सेम टाइप का रहेगा, और उसके बाद में CSP। तो AWS में भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह कुछ आई कैन कम अप विद सम नेमिंग कन्वेंशन ऑन द AWS एज वेल। और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे रहेगा, और दूसरी बहुत सारी चीजें रहती है। इसमें सिर्फ एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम समथिंग यू, अगर जिनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है, तो ज्यादातर क्या रहेगा, ये सर्वर जो है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट होता है, एंड फॉर दैट रीजन एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ लिमिटेशंस हैं, एटलीस्ट इट इज देयर टिल नाउ, कि यू शुड नॉट हैव दिस नेम एज 15 कैरेक्टर। अब तुम लोग ये सोचोगे कि लिनक्स सर्वर बना रहे हैं तो इसका एक्टिव डायरेक्टरी से क्या लेना देना है। तो हम लोग वो आगे देखेंगे कि व्हाई एक्टिव डायरेक्टरीज इज इम्पोर्टेंट, एंड ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज कर रही है, ठीक है। Everyone, please mute yourself. If you have question, raise your hand, right? Don't unmute or create unnecessary noise. Okay. तो ये मैंने नेमिंग कन्वेंशन ले लिया है, राइट, जस्ट टू फॉलो प्रोडक्शन लाइक रादर देन टेस्ट डेमो। करने से क्या होगा कि व्हेन यू, जब तुम एक्चुअल में प्रोडक्शन देखोगे किसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन को, तो उस तरीके से काम नहीं होता है। आई हैव रियलाइज्ड पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल कि जब सीखते हो तो थोड़ा वो डायरेक्शन नहीं रहेगा ना, तो यू सडनली फाइंड योरसेल्फ इन अ जोन कि तुमको कुछ पता ही नहीं, मतलब हमने को जो भी सीखा है वो तो कुछ काम का ही नहीं लग रहा। तो इसलिए अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही हम लोग ये सारी चीजें प्लांट करना स्टार्ट करेंगे, एंड यू गाइस आल्सो उसी डायरेक्शन में अपना थॉट प्रोसेस बना के सोचना स्टार्ट करोगे, तो थिंग्स विल बिकम इजी। यू नो द रैशनल बिहाइंड इट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नाम क्यों जा रहा है। और तुम जब सिर्फ सर्वर का जब नाम देखोगे, लॉग इन करोगे, तो तुमको पता चलेगा अच्छा इसके अंदर ये चीज है, उसमें ये है। ऑन प्रेम वाले सर्वर रहेंगे तो डेटा सेंटर किस लोकेशन पे है उसका नाम भी डाल दिया जाता है। तो दिस इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ वेयर डेटा सेंटर या जोन रहता है, तो मैं इसमें बी लगा देता, ऐसा आई कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो वो नेमिंग कन्वेंशंस का भी है होस्ट नेम का। देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, विल आल्सो ब्रीफली टच बेस ऑन दिस लेटर, ठीक है। देन वी हैव द फील्ड्स फॉर द लेबल्स, जो AWS पे 5th पे था, यहाँ पे 2nd पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, हम लोग की वैल्यू KV बेस्ड जिसको बोला जाता है, तो इसमें ये क्या है, ये की है और ये वैल्यू है, तो इसको की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं लेबल्स। इफ आई वांट आई कैन अटैच द लेबल्स। अलग फील्ड है तो इसमें फिर से मैं डाल देता हूँ इन्वायरमेंट में ओनली हाइफेंस अंडरस्कोर्स। एक्स्ट्रा मैंने तो कुछ कैरेक्टर लिया भी नहीं, कीज only hyphen underscore lowercase character number allowed key must start with the lowercase। अच्छा लोअर केस में ही लेगा हूँ, तो वैल्यू में डेफ डाल देते हैं, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं कुछ भी 112 मतलब कॉस्ट सेंटर ज़्यादातर बिलिंग इसके लिए रहता है, बिलिंग पर्पस के लिए डाला जाता है। और सर्वर टाइप डाल देते हैं, ये सर्वर रहेगा, DB सर्वर रहेगा, वेब सर्वर रहेगा, कुछ भी नाम डाल सकते हैं।
तो अभी फिलहाल के लिए चलो इसको SSH सर्वर करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सेव कर देते हैं, सारे लेबल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इज द रीजन। तो यहाँ पे रीजन चूज करना है। AWS में ऐसा है कि तुम्हारा जो पेज है वहीं पे तुमको रीजन चूज करना रहता है। तो यू ऑलवेज गोइंग टू हैव द रीजन। AWS में भी रीजन रहता है, राइट? वहाँ पे मैंने दिखाया था टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर में रीजन हमेशा जब भी तुम AWS पे लॉग इन करोगे रीजन सेलेक्टेड रहता है। यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, और अजूर में भी ऐसा नहीं रहेगा कि अजूर में तुम्हारा जो रहेगा रिसोर्स ग्लोबली दिखाएगा। AWS में रिसोर्स क्या करता है, वो रीजनल दिखाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द रीजन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। मोस्ट ज्यादातर उसमें ऐसे होते हैं। ओनली जो रिसोर्स ग्लोबल है उसमें वो रिसोर्स तुमको नहीं दिखाएगा। तो विल सी के कौन से रिसोर्स जोनल है, कौन सा ग्लोबल है। ये सब चीज क्या है कि जोन क्या किसको बोला जाता है, रीजन किसको बोला जाता है, और ग्लोबल क्या है। हम लोग क्लाउड में आगे देखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ चीजें आ रही हैं तो बस मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना अपना इंडिया ले लेता हूँ, बिकॉज वो सस्ता है। यहाँ पे ये सब भी सस्ता ही बता रहा हूँ। चलो इसमें से ये ले लेता हूँ, ठीक है। जोन आई डोंट केयर, यहाँ पे भी मैंने रैंडमली एक पिक कर लिया है, कुछ भी। अब आगे आता है हमारा मशीन टाइप। तो मशीन टाइप में यहाँ पे देखो इंस्टेंस टाइप था, जो उसने इंस्टेंस टाइप दिया था वो यहाँ पे हमारा मशीन टाइप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको क्या है, कंप्लीट वाली ही चीजें देनी है। रैम CPU सेलेक्ट करना है। तो इसमें से मैं जो है सब में छोटा वाला ये करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन जो सबसे सस्ता है। एंड दिस विल सेव मनी बिकॉज पैसे जाना अननेसेसरी। तो यहाँ पे वो बता भी रहा है मेरा कितना पैसा जाने वाला है। अभी मेरा महीने का $5 जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया, और दैट्स अबाउट इतना मेरा पर आवर जाने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो ये प्लेटफॉर्म के लिए है। वी कैन स्किप दैट बिकॉज दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द मशीन। ये क्लाउड एक्स्ट्रा है, कंटेनर वगैरह वी कैन इग्नोर फॉर नाउ। बूट डिस्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो OS का था यहाँ पर, चूज OS जो था यहाँ पर आ गया। बूट डिस्क मतलब वही है जो OS में अटैच होने वाली है, जो जिसपे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे हमको वही सारी चीजें सेलेक्ट करनी है साइज वाइज। जो स्टोरेज और OS, जो यहाँ पे दो चीजें थी AWS पे, गूगल ने कंबाइन करके दे दिया है। तो आई कैन चूज द OS, आई कैन चूज द स्टोरेज, जो भी मुझे चाहिए। तो OS और जो भी साइज रहेगा स्टोरेज का, वो साइज में दोनों यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। सो लेट्स गो एंड डू दैट। डेबियन ही ले लेते हैं बिकॉज अगेन ये उबंटू फैमिली से आ रहा है। अगर इफ यू रिमेम्बर वहाँ पे हमने उबंटू लिया था, तो यहाँ पर गूगल पे भी अलग अलग तरीके से है। उसने सारी टॉप लेवल कैटेगरीज बना के रखा है। एंड उसने सारे वेनिला इमेजेस है, ये जितने भी है वेनिला, मतलब इसके अंदर में कुछ भी इंस्टॉल नहीं रहेगा। कुछ अगर तुमको सर्विस इसमें प्री इंस्टॉल चाहिए तो वो अलग टाइप का फ्लेवर्ड इमेज रहेगा। तो इसमें लास्ट टाइम हमने यही लिया था उबंटू 18, यहाँ पर भी वही ले लेते हैं। बूट डिस्क है, ये रख लेते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है हमको। वी कैन कीप दिस। जब मैं इंस्टेंस डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो जाए, क्योंकि ये वाला जो है हमेशा बिलिंग होते रहेगा, राइट? अगर मैं जब इंस्टेंस डिलीट करता हूँ तो वो इसको रिलीज व्हेन जब ये रनिंग रहता है, ये तीनों अटैच रहते हैं। जब भी हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, मैंने बताया था कि कंप्यूट रिलीज हो जाएगा, नेटवर्क पे तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। नेटवर्क भी तुम्हारा बिकॉज देर इज नो ट्रैफिक, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, राइट? तो तुमको बिल नहीं करेगा। लेकिन स्टोरेज जो है तुम्हारा वो रिजर्व करके रख देता है। एंड स्टोरेज रिलेटिवली चीपर है, मतलब इसको ज्यादा पैसे भी नहीं लगते स्टोरेज को कंपेयर टू कंप्यूट। एंड नेटवर्क में जो तुम्हारा दो टाइप का ट्रैफिक रहता है, ईग्रेस और इंग्रेस और इग्रेस मतलब ट्रैफिक रहता है, जिसको इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक। ये तुमने एक रोड बनाया, राइट? जब भी तुम रोड से जाते हो टोल देकर जाते हो। आना जाना अगर रहेगा जितने, अगर तुम 10 बार जाओगे वहां पे टोल लगा हुआ है तो तुमको टोल देना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे जब तुम निक है जो कि जो रास्ता बना रहा है तुमको यहाँ पे आने के लिए, तो जितना यहाँ पे ट्रैफिक आएगा उतना ट्रैफिक वो प्रोसेस करेगा, तो वो तुमको उतना ये दिखा, उतना तुमको उसका पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, आउटगोइंग का ज्यादातर नहीं रहेगा। जो इग्रेस का ही रहता है, मतलब जो इनकमिंग आते रहते हैं। अगर मैंने गलत लिख दिया, ट्राइंग टू रिमेम्बर। बट एनीवे, इनग्रेस और इग्रेस दो टाइप के ट्रैफिक रहते हैं। आई रिकलेक्ट माय थॉट्स ड्यूरिंग द नेटवर्क। बट जो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा है दैट इज के बिल कहाँ पे होता है, ठीक है, और कौन सा ये रहेगा। तो दैट स्टोरेज इज गोइंग टू बी परसिस्टेंट। और जब मैं इंस्टेंस डिलीट कर दूंगा तो ये स्टोरेज वो डिलीट नहीं करेगा, वो रखा रहेगा।
तो स्टोरेज अगर रखा हुआ रहेगा तो जो भी थोड़ा सा बिल है वो मुझे आता रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई कीप दिस ऑप्शन एज डिलीट, एंड बाकी का हम लोग छोड़ सकते हैं। ये तीन ही इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। ओके, दिस इज आल्सो वी कैन स्किप। ये यहाँ पे जो इस एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में वो ऑप्शन था वहाँ पे रोल देने के लिए नेटवर्क कॉन्फ़िग, ये मैनेज्ड आइडेंटिटी जो मैंने बताया था, दैट इज द ये वाला सेम आ गया यहाँ पर। तो ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी आ गई है। मैनेज आइडेंटिटी जो थी, जो हम लोग एक आई एम रोल अटैच किया था, यहाँ पे वही है आई एम अकाउंट अटैच किया हुआ। तो इसका भी हम लोग बेनिफिट देखेंगे, यूज केस भी विल सी द यूज केस एज वेल। तो लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ बिकॉज़ दैट्स टू मच फॉर अस टू डाइजेस्ट एट दिस मोमेंट। एंड उसके बाद में आते हैं, ये फिर से उसका क्लिक करोगे तो सारा एक्सपांड हो जाएगा। तो लेट्स डू दैट। यहाँ पे नेटवर्किंग है, राइट? तो वहां पर भी इफ यू रिमेम्बर वी हैव दिस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पे, आई लीव इट टू डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नेटवर्क रहने देता हूँ। हम लोग सारी चीज़ों को आगे कंसेप्चुअली समझेंगे, तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, टैग एंड होस्ट नेम वी कैन स्किप। डिस्क है, अगर मुझे एडिशनल डिस्क अटैच करना है, जो स्टोरेज वाले में था, और यहाँ पे गूगल ने अलग एक डिस्क बना दिया है स्टोरेज में। वहाँ पे तुम्हारा ओएस डिस्क भी कवर हो रहा था, एंड देन अगर तुमको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्क लगाने तो वो भी कवर हो रहा था, विच इज नॉट विच जो यहाँ पर हो रहा है। सिक्योरिटी में यहाँ पर जो फील्ड है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, विच इज एसएसएच की, जो कि एडब्ल्यूएस में नहीं था, क्योंकि एडब्ल्यूएस में क्या कर रहा था, वो बनाने के बाद में एंड में अपने को देता था की जनरेट करने के लिए। तो सिक्योरिटी में हमको एसएसएच जो है वो वाला यहाँ पर रहता है। तो अगर मुझे जो भी करना है, मतलब यूजर बनाना है और उसको पब्लिक की इंजेक्ट करना है, यहाँ से करना पड़ेगा मुझे। तो ऑल आई हैव टू डू इज जनरेट द एसएसएच जो की रहेगा, और उसको यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे शेल पर आता हूँ। ठीक है, सीधी एसएसएच, और यहाँ पे मैं की जनरेट करता हूँ। की जन कर दिया मैंने, और एंटर। तो पब्लिक प्राइवेट की जनरेट हो रहा है, और ये देखो यहाँ पे सेव करेगा, बट मैं चाहता हूँ वहां सेव मत करने के लिए यहाँ सेव करो। और मैं एक यूजर बनाना चाहता हूँ लोकल एडमिन, तो मैं उसको लोकल एडमिन नाम दे रहा हूँ की का। डॉट का मतलब क्या है कि वी आर सेइंग के करंट डायरेक्टरी में करो। मेरी करंट डायरेक्टरी क्या थी, एसएसएच सर्वर, जिसमें मैंने सीडी किया हूँ अभी। ठीक है, तो आई हिट एंटर। पासवर्ड मुझे नहीं लगाना है मेरे की का, आई लीव इट। अभी एलएस करूंगा तो यहाँ पे 2 की आ गई, राइट? बाय डिफॉल्ट वो कहाँ डाल रहा था, यहाँ पे रख रहा था उसको डिफॉल्ट की डिफॉल्ट नेम के साथ में, बट मैंने उसको डिफॉल्ट नहीं किया हूँ, मैंने उसको यहाँ रखा हूँ। तो आई क्लीन दिस और लोकल एडमिन डॉट पॉप को ऐड कर लेते हैं। ये एसएसएच फॉर्मेट में, अगर तुम क्योंकि आई एम डूइंग दिस ऑन अ डब्ल्यूएसएल, मेरे पास डब्ल्यूएसएल है, अगर किसी के पास डब्ल्यूएसएल नहीं है तो यू कैन डू दैट ऑन द मोबाइल सिस्टम एज वेल। तुम पुटी से भी कर सकते हो, बट देन यू विल हैव टू कन्वर्ट, राइट? तो जस्ट बी केयरफुल के पुटी से करोगे पीपी के रहेगा तो दैट इज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो वाली की। ठीक है, यहाँ पे तो दिस इज द कमेंट पार्ट विच आई डोंट नीड। तो मैं सिर्फ इतना ये करता हूँ, बिकॉज एक्चुअली देर इज अ, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको बाहर ले लेता हूँ पहले। इसने वन लाइनर बना दिया, पहले वो बड़ा बॉक्स बना देता था। तो आई थिंक मुझको नोटपैड नहीं दिख रहा है। ठीक है, नोटपैड दिख रहा है अभी, जस्ट थम्स अप कर दिया तो भी चलेगा किसी एक ने भी। ठीक है, तो दिस इज द की, राइट? ये जो मैंने कॉपी किया हूँ, ये जो कमेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट इन गूगल, एंड दिस इज ओनली विद द गूगल, राइट? ये गूगल स्पेसिफिक कंसेप्ट है, ये हर जगह पे नहीं चलेगा, बिकॉज दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट। दिस इज राइट। गूगल क्या करेगा, जो भी तुम कमेंट में नाम दोगे उसको वो यूजर नेम कंसिडर करेगा। तो इफ आई नीड टू सप्लाई अ यूजर नेम आई हैव टू पुट दैट इन द कमेंट। तो मुझे ये यूजर नेम से अकाउंट बनाना है, तो ये मैं कर दूंगा। कॉपी कर लेता हूँ कि एंटर कर दो उसके अंदर में। ठीक है, हो गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहा, विच मीन्स गूगल हैज एक्सेप्टेड दिस। और थोड़ा सा अलग कर दिया उसने, पहले इसका अच्छा था ये।
अभी, क्योंकि पहले वो वैलिडेट करता था और बता देता था कि मैं ये यूजर नाम क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता था कि लोकल एडमिन यूजर विल बी क्रिएटेड, लेकिन अभी उसने वो वन लाइन, और ये पहले सब बड़ा बॉक्स भी आता था तो पूरा यहीं पे विजुअलाइज करने के लिए इट वॉज बेटर, बट नाउ गूगल और उसको थोड़ा सा कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। मैनेजमेंट इज एक मैनेजमेंट वाला जो है, बिकॉज इट्स रिलेट, यहाँ पे हम लोग रिलेशन लगा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हमको मिलेगा स्टार्टअप स्क्रिप्ट, जो यहाँ पे हम लोग यूजर डेटा से कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने यूजर डेटा में डाला था, अगर मुझे कुछ स्टार्टअप स्क्रिप्ट करना है तो दैट समथिंग आई कैन डू इट फ्रॉम द मैनेजमेंट स्क्रिप्ट। तो मैनेजमेंट स्क्रिप्ट मैं ओपन करता हूँ, तो ये ऑटोमेशन में है, जहाँ पे मैं स्टार्टअप स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट विल बी, जैसे मेरा सर्वर आप आएगा वो वहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ करना है तो वो है, अदरवाइज आई कैन, नाउ आई एम ऑल गुड। बाकी ये जो ऑप्शन है वी डोंट नीड टू एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, बिकॉज वो अब क्लाउड स्पेसिफिक चीजें हो रही है यहाँ पर, तो लेट्स लीव दैट। और ये एक प्री एम्प्टेबल था जो वहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस रहता है, हम लोग आगे देखेंगे जो क्या बेनिफिट है। लेकिन आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर अस टू गेट स्टार्टेड। एंड सिर्फ क्या है, सीक्वेंसिंग अलग हो गई है, नाम थोड़ा बहुत अलग हुआ है, लेकिन दे आर डूइंग द सेम थिंग। जो चीजें तुम यहाँ पे कर पा रहे थे, सेम चीज तुम यहाँ पे भी कर रहे हो, एंड सेम चीज तुम एजोर पे भी करोगे। तो तुमको क्या करना है, कंसेप्चुअली समझना है। यूआई पे चीजें चेंज हो रही है तो उससे सडनली ऐसा डर नहीं जाने कह रहे अब ये तो मुझे आता नहीं है, अब ये क्या होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा इंस्टेंस बन जाएगा। और अच्छा, तो अभी ये कुछ गूगल का जो जोन मैंने सेलेक्ट किया हूँ, उस जोन में रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो उसमें पूरी मेहनत कैसे लगा देंगे। ठीक है, मैं इसलिए गूगल का जो है ना फ्री टियर अकाउंट यूज करने से ये हो जाता है, क्योंकि फिजिकली रिसोर्सेस है वहां पर, ठीक है। तो उसने जो है फ्री टियर अकाउंट, जब भी फ्री टियर क्रेडिट को यूज कर रहा है वो, अभी अभी गूगल ने ये सारी चीजें स्टार्ट किया है। पहले ऐसा था कि सब करने के लिए दे देता था वो, बट अभी वो दे नहीं रहा है। तो क्या बोल रहा हूँ, the zone this does not have enough resource available to fulfill the request, try different zone or try again later। तो वो जोन जो मैंने सेलेक्ट किया हूँ, जो मतलब बस रैंडमली ही ले लिया था मैंने, उस जोन में बोल रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे सेम नाम देने नहीं देगा। इसको बार बार ट्राई करने से अच्छा है डिलीट ना हो। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन, और इस बार मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और एक काम करते हैं, कोई ऐसा रीजन लेते हैं, चाइना वाइना या जापान। चाइना में तो नहीं है कुछ, लेकिन वो ऐसा रीजन लेते हैं जहाँ पे ज्यादा यूसेज नहीं रहेगा। यूरोप छोड़ देते हैं, एशिया में ही लेते हैं, ताइवान में ले लेते हैं। आई होप यहाँ पे अवेलेबल रहे रिसोर्सेस। N1 लेते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस, एंड F1 माइक्रो द स्मॉलेस्ट वन, ताकि ज्यादा फील ना रहे। एंड ये सारे ऑप्शन आई एम गुड विद दिस। डेबियन लिया है, उसको जल्दी से 1 to 18 इज ओके, बिकॉज स्टेबल वर्जन है अभी के लिए। हियर वी आर गुड। एंड नेटवर्किंग में आ जाते हैं। अब नेटवर्किंग में यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो फायरवॉल है ना, ये यहाँ पे आया नहीं है अभी तक, राइट। दैट इज द मिसिंग, जैसे कि फायरवॉल यहाँ पे आया नहीं है। गूगल फायरवॉल बोल रहा है, जो कि यहाँ पे उसने बताया हुआ है, लेकिन वो दो ही ट्रैफिक अलाउ कर रहा है, HTTP अलाउ कर रहा है और HTTPS अलाउ कर रहा है, राइट। तो HTTP के लिए वी नो कि पोर्ट क्या है, 80, मतलब यहाँ पे 80 पे अलाउ कर देगा और 443 पे अलाउ करेगा। बट जो हमको चाहिए फिलहाल 22 SSH पोर्ट, तो वो यहाँ पे वो दे नहीं रहा है, ठीक है। तो एक मतलब लकीली गूगल ने क्या कर रखा है, गूगल ने एक डिफॉल्ट रूल बना के रखा हुआ है। गूगल का एक डिफॉल्ट नेटवर्क है, हम लोग को नेटवर्क बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि तुमको करना नहीं है, इसलिए मैं अभी उस फील्ड पे जाते नहीं हूँ। तो गूगल ने एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है, ये उसने अलाउ, ये ऑप्शनल में दिया है ये चीजें। 80 और 443 वो हर सर्वर पे नहीं अलाउ कर रहा है। गूगल ने जो नेटवर्क बनाया है डिफॉल्ट, जो कि AWS पे ही बना हुआ था, तो हर क्लाउड पे क्या होगा, एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना रहेगा फॉर टू क्विक स्टार्ट, ताकि हम लोग कर ले। लेकिन वो नेटवर्क से हम लोग क्या अपनी प्रोडक्शन वाली एप्लीकेशंस बनाना चाहिए नहीं।
उसको पहली फुर्सत में जाके डिलीट करना है अपने। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्शन ग्रेड चीज करेंगे या कंपनी में कुछ करोगे, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले वाइप उसको निकाल दिया जाता है, डिफॉल्ट नेटवर्क को निकाल दिया जाएगा, बिकॉज दैट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी सिक्योर, और वो प्रेडिक्टेबल है, बहुत सारी चीजें रहती है उसके अंदर में, उसको हटा दिया जाता है। उसमें जो साइडर रेंज, जो आईपी के जो रेंज यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो हर कंपनी का अलग अलग रहता है, तो वो पहले उड़ा दिया जाता है, वो यूज नहीं होता। लेकिन अभी हम लोग वो भी देखेंगे आगे, ठीक है, बट फॉर नाउ तो यहाँ पे 22 और आरडीपी के लिए जो पोर्ट है हमारा 3389, ये गूगल क्या कर देता है, 00 के लिए ओपन करके रखा हुआ है, विच इज नॉट सिक्योर, और इसलिए गूगल भी वो खुद भी बोलता है कि यूज मत करो करके मेरा डिफॉल्ट नेटवर्क जो मैंने बना के दिया हूं। क्योंकि वो अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको नहीं पता नेटवर्क का और फायरवॉल का कंसेप्ट, तो वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर द फायरवॉल, उसमें तुमको क्या देना रहता है, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड पोर्ट एंड मेथड, राइट। तो गूगल ने क्या कर रखा है, सोर्स में ये दे रखा है 0000, विच मीन्स मेरा जो भी पब्लिक आईपी रहेगा वो भी इसके अंदर आ गया, और उसने ये दोनों पोर्ट पे अलाउ कर रखा है, मेथड उसका अलाउ है, बिकॉज वो रिक्वेस्ट को अलाउ करता है उसके अंदर में। एंड टारगेट में जो है वो जो भी डिफॉल्ट नेटवर्क पे सारे इंस्टेंस है वो सब आ जाते हैं। तो मैं जो अभी एक बनाने वाला हूँ डिफॉल्ट इंस्टेंस पे रहेगा। तो फायरवॉल गूगल में ऑलरेडी है, नेटवर्क में कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसके अंदर में कुछ करना है मुझे। तो आई कॉपी दिस की, ऐड आइटम, पेस्ट। मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं था हमारे लिए, क्रिएट। मैनेजमेंट में मतलब कुछ चीज थी जो वी माइट इनकाउंटर और विच वी शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज ये कॉमन चीजें हैं जो हमको इंटरैक्ट करने के लिए लगेगी। लाइक जो मैनेजमेंट में जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट और जैसे सिमिलरली यहाँ पे यूजर डेटा है, तो सेम चीज है प्रीटी मच, इफ यू सी राइट, कहीं ना कहीं वो लोग आ रहे हैं सारे के सारे, हर क्लाउड पे वैसे ही रहने वाला है। तो इसलिए कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, होपफुली यहाँ पे मिल जाए। ओके, वी आर इन लक, क्रिएट हो गया वो, और ये यहाँ पे हमारा पब्लिक आईपी मिल गया हमको। तो इसको जो ये पब्लिक आईपी ये है इसका, और प्राइवेट आईपी जो है उसका 10.140, विच वी डोंट केयर, और अभी हम लोग कनेक्ट भी नहीं करेंगे इससे। अभी हम लोग इससे कनेक्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और जब हम कनेक्शन आएगा हमारा फायरवॉल पे, तो दैट विल बी आवर नेट का जो भी हमारा पब्लिक आईपी रहेगा, एंड देन विल कनेक्ट हियर। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, एंड नाउ इफ यू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ एसएसएच, क्योंकि अब मैं लोकल एडमिन मेरा यूजर है, राइट, उससे क्योंकि मैंने खुद यूजर नेम दिया था वहां पर, और ये मेरा सर्वर है। अगर मैं ये करूंगा तो वो क्या करेगा, वो जो डिफॉल्ट लोकेशन पे की है ना, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो राइट नाउ मेरा जो यूजर है दैट इज रूट, तो वो क्या करेगा, इस की को एक्सेस करने की कोशिश, इस की को यूज करेगा। यहाँ पे है user। तो इधर जो आईडी आर एस है ना, इसको वो यूज करेगा, बट द प्रॉब्लम इज ये वाला की तो मैंने यूज ही नहीं किया, राइट। मैंने तो मेरा जो ताला चाबी है ये यहाँ पर है, पैडलॉक, और द की जो दैट आई एम यूजिंग, तो मैंने ये वाला मैं वहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एंड इफ आई ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, जो कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या करेगा, ये वाला की यूज करेगा, बिकॉज मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो वो डिफॉल्ट लोकेशन पे डिफॉल्ट की पे फॉल बैक करेगा। अगर इन दिस सेम यहाँ पे ये भी है, गूगल कंप्यूट इंजन नाम की भी एक प्राइवेट की है, लेकिन वो ये वाला यूज नहीं करेगा, बिकॉज दैट ये तो डिफॉल्ट लोकेशन में है ना, .ssh में है, लेकिन ये डिफॉल्ट नाम से नहीं है, तो वो उसको यूज नहीं करेगा, वो दैट ही इज गोइंग टू यूज दिस की, और वो फेल हो जाएगा अगर इफ आई वर टू रन दिस वे, वो फेल होगा। एंड लेट्स सी दैट। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स आ गया, जो भी सर्वर को मैं कनेक्ट कर रहा था उसका उसने फिंगरप्रिंट सेंड किया है मुझे, हैश जो शाह 256 है, ये ऐसे जिसको प्रोनाउंस किया जाता है शाह, तो शाह 1 शाह 256 अलग अलग एल्गोरिथम है, हम लोग देखेंगे उसको क्रिप्टोग्राफी में। यस, और परमिशन देना है, बिकॉज जो मैं की यूज कर रहा हूँ पब्लिक की है, तो वो बोल रहा है कि की जो कॉम्बिनेशन है बंद हुआ है। तो यहाँ से अभी देखो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी तुमको कि ट्रबल शूटिंग के लिए जो एरर्स है, डीएनएस का एरर नहीं आया, राइट, उसने डीएनएस कंप्लेन नहीं किया, फायरवॉल कंप्लेन नहीं किया, कनेक्शन रिफ्यूज नहीं बोला उसने, तो डीएनएस नेम 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 रेजोल्यूशन नहीं आया हमको, कनेक्शन टाइम आउट नहीं आया, कनेक्शन रिफ्यूज नहीं आया,
हमको पब्लिक की आया है, तो ये जो पब्लिक की जो एरर है फॉर्म डिनाइड वाला जो आया, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, राइट। अगर ये कोई वेब सर्वर रहता तो कुछ और रहता था वो, अगर एप्लीकेशन, तो ये क्या करता है ज्यादातर वो कोड भेजता है 404 400 मतलब सक्सेस वाले 200 ऐसे टाइप के कोड रहेगा। तो वो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, विच मीन्स वी आर गुड। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो एरर थ्रो कर रही है, तो ये सारे जो हमारे लेवल्स थे वो पार हो गए। और जो इंटरनल फायरवॉल भी रहता है यहाँ पर, वो इंटरनल फायरवॉल भी जो नो राउट टू होस्ट जो आता है उसमें, ये 4 एरर्स हैं, ठीक है। डीएनएस, एक्सटर्नल फायरवॉल, सर्विस, इंटरनल फायरवॉल्स, चारों के चारों एरर नहीं आए, विच आर वेरी कॉमन। ठीक है, बार बार मैं रिपीट करने का इसलिए क्योंकि ये बहुत इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, एंड दिस शुड, तुम्हारा ट्रबल शूटिंग ऐसा होना चाहिए। अगर तुम इतने अच्छे से उसको बताओगे तो ही नो, इंटरव्यूअर को पता चलेगा व्हेन यू बाहर जाओगे तो, अगर कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए, तो ही नो, बिकॉज दे ऑलवेज गिव यू अ सिनेरियो लाइक दिस, कि जहाँ पे उनका वेब सर्वर है या कोई ऐप सर्वर है या कोई डीबी सर्वर है जिसपे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, हाउ डू यू कनेक्ट दैट। तो तुम्हारा ट्रबल शूटिंग यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है इस तरीके से इन्वोक होना चाहिए। So right now we are getting an application specific error, so no problem, because we know that the key that we are using is a wrong key, right? अगर कोई तुमको कंप्लेन भी कर रहा है कि ये एरर आ रहा है तो probably you are using the wrong key, और अगर तुम राइट की यूज कर रहे हो तो परमिशंस राइट तुमको देखना है कि की परमिशंस बराबर है या नहीं। तो लेट्स यूज द राइट की बाय सप्लाइंग दिस ऑप्शन, एंड दिस इज माय की। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो देखो मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया, राइट। यहाँ पे देखो होस्ट क्या बनाया जो मैंने उसको दिया था। AWS में क्या करता है, वो आईपी डैश प्राइवेट आईपी जो भी रहता है डैश डैश करके लगा देता है उसमें। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैंने दिया था वो हुआ, तो जो नेम मुझे यूआई पे दिखाई दे रहा है, द सेम नेम आई एम लुकिंग हियर एज वेल। AWS पे यूआई पे जो नेम दिखाई देगा वो नेम वहाँ पे नहीं रहेगा, बिकॉज यूआई इज अ डिफरेंट, और जो होस्ट है वहाँ पे डिफरेंट रहता है। तो कंपनी के लिए डिजायरेबल ऐसा रहता है कि इट शुड बी अ प्रॉपर नेमिंग स्कीम, वहाँ पे एक ऐसा कुछ भी रैंडमली डालने नहीं डाल मतलब डालना सही नहीं है। तो इसलिए मैंने डेमो या टेस्ट सर्वर ऐसा नहीं डाला, उनको बता दिया जस्ट सो यू गेट एन आइडिया कि इस तरह से काम होता है कंपनीज में। ठीक है, तो वी आर हियर नाउ, एंड दैट्स हाउ वी जनरली कनेक्ट। द अदर मेथड यहाँ पर ये है, गूगल में जो इजी जो कंसेप्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द गूगल इज बाय सिंपली क्लिकिंग हियर। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो वॉट एवर यू आर लॉग्ड इन विद, जो भी तुम्हारा यहाँ पे ये रहेगा यूजर नेम, उस यूजर नेम के नाम से वो यूजर बना देगा। ठीक है, और तुम्हारा पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करेगा, और प्राइवेट की भी वो खुद के पास ही रखेगा। तो यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग, मतलब एज अ डेवलपर, इफ यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर, यू क्रिएटेड अ सर्वर फॉर अ टेस्टिंग पर्पस, नाउ यू वांट टू गेट इन। तुमको ऐसे से समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। वो एक पॉपअप विंडो आएगा और तुमको कनेक्ट करा देगा। दैट इज द इजीएस्ट वे। लेकिन ये तरीका इसलिए मत करना बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको बस वी हमको सिर्फ सर्वर बना के हाँ काम चला लो ऐसा नहीं करना। हम द होल पर्पस हमारा यहाँ पर ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली क्या हो रहा है। एडब्ल्यूएस में किस तरह से, एडब्ल्यूएस में भी ऐसा ऑप्शन है जो बाजू में था वहां पर, राइट, जहाँ पे तुम क्लिक करके सीधा क्लिक करो तुम सर्वर पे कनेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट हो गया, राइट। तो जो ये मेरा ईमेल आईडी था और जो मेरा डोमेन था उसने हटा दिया और वो इस ईमेल आईडी से बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। देर इज वन कमांड जिससे हम लोग पता कर सकते हैं हाउ मेनी यूजर्स आर लॉग्ड इन। तो यहाँ पे देखो 2 यूजर लॉग्ड इन बता रहा है, डब्ल्यू इज द कमांड दैट विल शो यू हाउ मेनी यूजर्स आर लॉग्ड इन। तो देखो एक यूजर मैं हूँ लोकल एडमिन, और ये कहाँ से कनेक्ट हुआ है, तो दिस इज माई नेट, ये मेरा नेट है यहाँ पर। और ये जो ब्राउजर है ना, तो ये गूगल का जो भी यहाँ पर क्योंकि गूगल का सर्वर से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो गूगल के जो भी इससे आया हुआ है तो ये उसका पब्लिक आईपी है गूगल का। ठीक है, तो ये इस तरीके से, क्योंकि ब्राउजर बेस्ड है ना, तो गूगल का जो भी यहाँ पे जो उसका राउटर रहेगा या उसका कोई नेट रहेगा या प्रॉक्सी रहेगा या बैस्टियन होस्ट रहेगा, वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कमांड है, एंड टुडे जो हमारा लेक्चर भी है दैट इज आल्सो ऑन द यूजर मैनेजमेंट। तो आई होप कि एसएसएच कंसेप्ट अब सबका समझ क्लियर हुआ होगा, एंड देन क्रिएटिंग दिस वी हैव क्रिएटेड सो फार, वी हैव क्रिएटेड इंस्टेंस ऑन वर्चुअल मशीन, उस पे हमने एसएसएच किया, एडब्ल्यूएस पे किया, जीसीपी पे भी किया। नेक्स्ट वीक विल सी दैट ऑन द अजूर एज वेल। ठीक है, and most of the lab we will be doing on the AWS or Azure,
और सब लोग क्या करो, सिर्फ AWS और AWS और GCP का अकाउंट बनाओ, ठीक है? बिकॉज क्या होगा, यू गाइस डोंट नो मच। बाय द टाइम तुमको चीजें पता चलेगी, तुम्हारा जो आशोर है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि वो 1 महीने का ही, वो 1 महीना ही देता है, राइट? गूगल में 3 महीने दिया हुआ है, तो यू गेट गुड इनफ टाइम टू डू। और उसके बाद में गूगल का जो फ्री टियर है, जो AWS का जो फ्री टियर लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर, तो आशोर का फ्री टियर में यू हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। एक बार तुम्हारा क्रेडिट खत्म हो जाता है तो गूगल का अभी तो बहुत अच्छा था, बट रिसेंटली आई हैव नॉट सीन, एटलीस्ट लास्ट ये साल में 6 महीने से मैंने किया नहीं हूँ, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट चेंजेस गूगल हैज ब्रॉट इन। लेकिन वहां पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, बट स्टिल 3 मंथ्स जो तुमको देता है क्रेडिट के साथ में, दैट इज गुड इनफ टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर। सो अकाउंट बनाना है ना, तो राइट नाउ क्रिएट AWS एंड GCP अकाउंट टू प्ले, और उसमें तुम प्ले करना स्टार्ट करो। अश्योर भी कब करना, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लेवल पे चले जाती है, एंड देन यू क्रिएट, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो यू वांट टू डू थिंग्स फास्ट। जल्दी जल्दी उस पर चीजें करोगे जब सारी चीजें समझ में आएगी। अभी तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम समझोगे, करोगे, समझोगे, तो मैं लैब में बता दिया करूंगा, यू विल हैव द वीडियोस, राइट? और कंसेप्चुअली हम लोग ऐसे कॉमन ग्राउंड पे रहेंगे, बिकॉज हम लोग यही फॉलो करने वाले हैं, क्लाउड एग्नोस्टिक, ठीक है? तो तुम्हारा क्लाउड चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा जो टूल रहेगा ज्यादातर वही रहने वाला है। तो ज्यादातर हमारा फोकस POSIX वाले कंसेप्ट पे ही रहेगा, जिसमें ये सारी चीजें होगी। यस वैभव, यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah, good afternoon, sir. हेलो गुड आफ्टरनून। यस। सर, जैसे आपने वो SSH की जो कॉपी पेस्ट किए थे ना गूगल में, हम्म। हाँ सर, वैसे ही अपन AWS में कहाँ पे कॉपी करते हैं उसको सर? नहीं होता है ना, मैंने वही तो समझाया था कि AWS क्या करता है कि AWS लास्ट वाला जो स्टेप रहेगा यहाँ पर, विच वी हैव नॉट रिटन, जनरेट करेगा वो अपने लिए SSH की, एंड AWS विल जनरेट, और वो पब्लिक की इंजेक्ट कर देगा, एंड द यूजर नेम इज आल्सो ऑफ AWS चूजिंग, वी डोंट चूज द यूजर नेम एज वेल। AWS सिर्फ क्या करता है, हमको सिर्फ प्राइवेट दे देता है, इस जो उसका नाम देता है, तो की नेम डॉट पेम, दैट इज नथिंग बट अ प्राइवेट की, ठीक है? एंड देन क्या हाँ करेगा हाँ हमारे इंस्टेंस में, he will going to inject the public key, and also he will use the username of choosing. We don't get to choose the username as well. तो वहाँ पे most commonly it will use EC2 dash user, or it will use the server name. If you are on a Ubuntu server, probably Ubuntu is the user, or if you are on some other CentOS, then some that kind of the user वो use करेगा। तो वो यूजर खुद ही बना देगा, की भी खुद ही इंजेक्ट कर देगा, हमको सिर्फ यूआई से हम दैट्स ऑल वी कैन डाउनलोड, ठीक है? बट वी हैव द कंट्रोल ज्यादा है हमारे पास में। एंड जो ये वाला था यहाँ पर, दिस थिंग, राइट, दिस इज नाउ आल्सो अवेलेबल इन द AWS, जहाँ पे वन क्लिक वी कैन डू वन क्लिक, एंड AWS इज आल्सो गोइंग टू जनरेट द पब्लिक प्राइवेट की, एंड बेस्ड ऑन द रोल जो हमारा वहाँ पे, whatever user you are logged in with on the AWS console, by that username it will create the user, and then you will be able to log into the server. So that is also one way to do that. AWS पे भी है, Azure पे भी है, GCP पे भी है, it's available everywhere, but we need to understand it conceptually. तो AWS पे that this was the difference last time पे मैंने बार किया था, and good that you have asked, right? At least लास्ट टाइम पे, if you have not paid attention, you अभी समझ में आ गया होगा hopefully तुमको, and that might have helped other as well, जो because I know there are people who don't even अगर समझ में भी नहीं आता है, still they are keeping it quiet, and I don't understand. अगर तुमको सीखना है तो you need to speak up. चुपचाप बैठने से नहीं होगा काम। I said that, am I audible? Yes, yes. Yeah, regarding that SSH, using SSH region, we can generate a private and public key. So we can import that public key in AWS key pair option, right? Can we do that like that? In AWS Keeper, yes, you can do that. I think there you normally you can import that as well. That is another way to do that, which we will. The point is right now we are only covering the SSH, and the normal way how AWS does that. There is the other ways, Okay. right? And there you can reuse that. You can while creating the instance, you can store that in the key pair, and then you can use that. So that is also a way. But normally this Okay. is how they are doing it, right? So we'll see that later when we Okay. when we all, right.
when we talk about cloud at that time, yeah, you can mute yourself. I'm just saying for the others as well, because you raised the question, other might also wonder, okay, what you're talking. So for others, don't worry, we'll see cloud topics later, and then us time pe we'll see that things in details, right? Like how we are seeing in detail, because you have to just understand conceptually, हर cloud है थोड़ा बहुत अलग तरीके से काम करेगा, एंड अगर तुमको कंसेप्ट पता है तो यू विल नॉट स्ट्रगल, तुमको चीजें भी सही से समझ में आएगी, ठीक है? तो SSH we are moving away from the SSH topic now. Now this is the only एक जो पार्ट रहेगा मैं Azure पे बता दूंगा नेक्स्ट वीक, एंड दैट इज आल्सो विल डू इट वेरी फास्ट फॉरवर्ड, बिकॉज अब तुमको क्या है, सिर्फ UI का डिफरेंस आएगा। एंड अकाउंट बनाने के लिए जो मेरा सजेशन है, यू ओनली क्रिएट द AWS एंड GCP अकाउंट, क्योंकि यू गेट 3 months, यू गेट अ गुड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, 300 credit for 3 months, and then 1 year, or I mean forever free, you can create the instance that I have created, right? मैंने तो F1 माइक्रो बनाया, लेकिन वहाँ पे एक और दूसरा टाइप का इंस्टेंस था, यू कैन क्रिएट दैट 1 GB, जो AWS 1 साल के लिए फ्री देता है, गूगल फॉरएवर फ्री दे रहा है वो, तो उसका यू कैन गो एंड रीड द डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो दैट वे ये यूज कर सकते हो। तो इसलिए गो अहेड एंड क्रिएट दीज 2 अकाउंट्स। Azure तब क्रिएट करना जब तुमको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ मुझे क्लाउड समझ में आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके Azure की बहुत सारी सर्विसेज एक्सप्लोर कर लूँ, बिकॉज दैट 200 इज अ वेरी गुड अमाउंट, बट Azure doesn't give enough time. सिर्फ एक महीने में you have to do everything, and if you're not able to do, then you're done. You recreate that, and recreating account is also not that easy. You have to get everything new, your mobile number, email ID, and the debit card or credit card that Azure accepts. Okay, so create account here and do the practice on any of these 2 cloud, that we are doing. I would say, do the practice on both of the cloud, try that, and conceptually samjho, and do practice, because that's what gonna make you perfect. Practice, and you'll get better of these clouds. Okay, so let's come to Linux user management, the topic for the day after SSH. So in Linux, we know there is one, we have the kernel space, and then we have a user space. Okay. So this is kernel space or kernel environment, and this is going to be the user space where, all the, if you remember, Vaibhav, you have a question? I still see your hand. If not, then you can lower the hand. No, sir, I don't have any question. Okay, just lower your hand then. Okay. Lower hand. Okay. In kernel, starting में we have seen the stacks, right? So यहाँ पे hardware रहता है. You're gonna have all your hardwares. You'll have this hardware is a layer, and then kernel is nothing but a bunch of drivers, right? Which will allow you to talk to the different hardware. So that's what kernel space gonna consist. And सारे drivers रहेंगे that using that driver you should be able to talk to the hardwares, and then you can do that. On user, we will have 2 things. We'll have a syscalls, and then we'll have the permissions to manage everything that is below the user space. The most of the resources that will be running. यहाँ पे एक आता है, we'll have this syscall, and then we'll have the permission. And permissions to control. And when we create, and then in the user space, we will have users, and we will have the processes whenever we run the services, right? That's how it will be there. And every process will make some system calls, and the process will have the permission, and based on that, it will be allowed to the user, right? So it goes that way. So this is the way users will be. All the normal users are going to be here. There is a one super user, or the user who's considered to be the father is the root, and root user will live here, and that's why the permission, right, जो यहाँ पर है, that doesn't apply to root पे कुछ permission का जो है boundary apply नहीं होता, because वो he is sitting beyond that, right? Permission सिर्फ इस पे apply होता है, मतलब process will have the permission to run the process, and that is applicable to the user.
बट रूट यहाँ पे कर्नल में बैठा हुआ है, तो उसको कुछ परमिशंस अप्लाई ही नहीं होता। तो रूट इज लाइक अनलिमिटेड यूजर, इट कैन डू एनीथिंग। जब जो फाइल पे परमिशंस भी नहीं रहेंगी, जहाँ पे there will be files that is not owned by any user, root can still go and do things, because root is not sitting here in the user space, and everything that we will be seeing the files that will be here in the user space. So root can go and do anything anywhere, because root is not sitting in the user space, it's sitting in the kernel space. Okay. And from the users, types of users on the Linux, we have we have three types of user, and generally you should be aware of, because in organization or in the projects or enterprise application, these users are very commonly used. One of the user, we have a normal a user account, a user which is known as a user account, or general user we can also call it. And these are like a human users. कोई किसी को like मेरे लिए एक account बनेगा, that will be user account. किसी colleague के लिए बनेगा, that will be user account. A human will actually use that account to log in to the server. Then there will be system accounts, system users, जिसको हम लोग सर्विस अकाउंट बोलेंगे। सर्विस अकाउंट बोलते हैं, you move to the Microsoft की दुनिया में जाओगे तो it will be known as service principal, यहाँ पे इसको यूजर प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। तो Azure पे you'll see that people will मतलब ज्यादातर वहाँ पे टर्म वही यूज होगा। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का जो कुछ प्रोडक्ट्स है हम लोग वो भी यूज करेंगे तो वहाँ पर भी प्रिंसिपल बोला जाता है। That's nothing but this. Same thing, different names, right? और यहाँ and then we have super user. Super user by default कौन है? Root रहने वाला है। तो root is the default super user, and root can do everything. We can make general user account and service account also a super. We can give them a super power, right? And that's something वो देने के लिए super user to give those powers. There are two utilities. One is su, which is super user, and another one is su do, which is super user do. So su में क्या करेगा तुमको, any general user can turn himself into root. That's something that he can do. That is the only thing you can do with the su. And the thing with the su command is, you, in order to use this su command, you require root password. तो सू कमांड अगर तुमको यूज करना है, बिकॉज इट कैन गिव यू द सुपर पावर, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ यूजर लिख दिया मैंने, सुपर यूजर है। सुपर यूजर, अनदर फैंसी टर्म इज एलिवेटेड यूजर, जो तुम यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया के वर्ड्स है। They'll use user principal, service principal, elevated user और elevated permissions. यहाँ पे super user बोला जाता है। elevated मतलब उसको higher permissions दी गई है, from coming from elevator वाला concept याद रखने के लिए बता रहा हूँ। So तुम्हारे conversations में भी अगर तुम ऐसे words use करोगे, if you talk in that way, then you are fine, refined. तुम्हारा जो बोलने का तरीका रहेगा, that will be groomed. So that is going to enhance your communication, because technical is on one side, but the representation is also on the other side, where you have to improve your communication and the way you talk as well. So even if you can speak a good English, still you need these technical terms to make a good impact on your conversations. Okay. तो to run the su, root password की जरूरत पड़ेगी. To run the sudo, we going to use the user password की जरूरत पड़ेगी. यूजर पासवर्ड मतलब इस यूजर के पास जो पासवर्ड होगा, इस सिस्टम यूजर के पास में जो पासवर्ड होगा, विल हैव टू गिव दिस वन, और सू रन करने के लिए हमको रूट पासवर्ड देना होगा। तो अभी यू सी द प्रॉब्लम के अगर इफ आई हैव क्रिएटेड यूजर्स, राइट, 3-4 यूजर बनाए और उनको अगर मुझे सू देना है तो सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट का पासवर्ड एक्सपोज करना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सपोज द रूट पासवर्ड, व्हिच इज नॉट अ गुड आइडिया। आई कैन नॉट डू दैट फॉर एवरीवन, मे बी एडमिन कैन डू दैट, बट एवरीवन शुडंट डू इट। सो द ये जो है अच्छा, दिस इज अ गुड वे टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे I don't have to expose the root password. They simply have to use their own password. Right? That is the difference. So normally we will be doing this.
or this is the better approach or safest approach to do that as well, to distribute some level of permissions to normal other users other than the root users. तो हम लोग उसको टोटल रूट भी बना सकते हैं, या वी कैन जस्ट गिव देम अ फ्यू परमिशंस. लाइक हम लोग उसको कुछ कुछ फाइल पे परमिशन दे देंगे, कुछ कमांड रन करने की परमिशन देंगे. विल नॉट गिव हिम द होल एबिलिटी दैट रूट हैज, बट सू में तुमको पूरी एबिलिटी चले जाएगी, बिकॉज सू ऑल यू कैन डू इज टर्न योरसेल्फ इनटू रूट. सू से क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट तुम अपने आप को रूट में बदल सकते हो, यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. But sudo say you can get a very limited or restricted access, and for that, in order to run the sudo, you'll have to use your own password to revalidate or authenticate yourself that you are the user. Because क्या हो सकता है, तुमने लॉगिन किया तुम्हारे सिस्टम पे, राइट, और कोई दूसरा तुम्हारा फ्रेंड या कोई भी घर में आ गया जो इल इंटेंशन से आ गया कि चलो इसने मेरा ये किया था, मैं अभी इसके नाम से आगे फाइल डिलीट मार देता हूँ और उसके बाद खत्म कर दूंगा. तो अब ये कोई बिजनेस, अगर ये कोई क्रिटिकल फाइल डिलीट करने जाएगा तो sudo से जब रन करेगा तो उसको पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा. नाउ यू हैव टू फिर से पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा, राइट. सो दैट वे सेफ है. तो अगर कोई ऐसा भी यूजर आता है जो तुमको कुछ ये करना चाह रहा है, तो ही दैट यूजर कैन आल्सो, अभी उसको भी पासवर्ड पता रहना चाहिए तभी करेगा, अदरवाइज ही कैन नॉट डू दैट, राइट. तो जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो हम लोग को हमारा होम डायरेक्टरी मिलता है. वी ऑलवेज लैंड इन आवर होम डायरेक्टरी. जो हमारा जब हम लोग लिनक्स सर्वर पे लॉग इन करते हैं, यहाँ पर व्हेनेवर आई लॉग इन, तो यहाँ पे मेरा सेशन है, तो इफ आई डू pwd हियर, तो दिस इज माय होम डायरेक्टरी. सो द लैंडिंग, जो मेरा लैंडिंग यहाँ पे है सीधा मेरे होम डायरेक्टरी में होता है. तो एवरीथिंग आई कैन डू इट हियर. बट अगर मुझे इसमें रूट में कुछ करना है, तो इफ आई नीड टू डू समथिंग इन रूट, इट विल आस्क फॉर माय ओन पासवर्ड. राइट नाउ आई डोंट हैव द पासवर्ड, एंड थिंग्स आर, यहाँ पे थिंग्स डिफरेंट वे में सेटअप हुई है, बिकॉज we can control this कि whether user ने whenever he is running the sudo command, user should he put a password, मतलब should user put the password or not. तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब we can control all these things कि उसने पासवर्ड उसमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल है कि कंट्रोल में क्या किया हुआ है कि पासवर्ड, आई डोंट नीड टू पुट अ पासवर्ड. तो दैट समथिंग वी कैन कंट्रोल. देयर आर कपल ऑफ फाइल्स. One is we have seen a lot of files in the etc, right, and this is also one of the file in etc, sudoers file, जो कि system generated है, and it's not recommended you go and make direct change here. In Linux, that will be the concept everywhere. There will be a snap in directory, ठीक है. तो सेम जो कॉन्फ़िग रहेगा, बिकॉज etc में क्या रहता है, etc डायरेक्टरी इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस. ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस विल बी हियर. वी हैव सीन, अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल देखे, हमने SSH के रिलेटेड भी एंड नेटवर्क रिलेटेड भी. तो 2-3 फाइल लास्ट वीक में मैंने बताया था, ठीक है. एंड फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी थ्रू आउट विद द एप्लीकेशन. जो भी हम लोग आगे वेब सर्वर करेंगे, ऐप सर्वर करेंगे, डेटाबेसेस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एवरीवेयर. स्नैप इन डायरेक्टरी कंसेप्ट, उसमें क्या रहेगा, सेम चीज रहती है. दिस इज अ फाइल राइट नाउ, दिस इज नॉट अ डायरेक्टरी, ठीक है. एंड स्नैपिंग डायरेक्टरी का कंसेप्ट रहता है कि sudoers.d, ये एक ऐसा डायरेक्टरी रहेगा, एंड देन यू कैन पुट एनीथिंग यू वांट. यहाँ पे जो भी तुमको रहेगा तुम यहाँ पे अपना कस्टम डाल सकते. तो जनरली आइडिया इज कि जो भी ये sudo मतलब एक प्रोग्राम है, राइट. एक प्रोग्राम किसी ने लिखा हुआ है, सिस्टम वाला प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है. तो वो जो सिस्टम खुद से जो फाइल में कुछ चेंजेस करेगा, दैट सिस्टम और प्रोग्राम जो है या सर्विस अकाउंट जो भी उसको हैंडल कर रहा है, वो डायरेक्ट इस फाइल में चेंजेस करना चाहिए. और जो भी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, यूजर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस डाल रहे हैं, तो वो सारे हम लोग ऑलवेज वी शुड पुट इन ए स्नैपिंग डायरेक्टरी. तो फॉर एवरीथिंग देयर विल बी ए स्नैपिंग डायरेक्टरी, एक स्नैपिंग डायरेक्टरी रहेगा. तो हमने एक इंजनएक्स का देखा था, तो इंजनएक्स में भी ऐसा था. इंजनएक्स था और इट लाइक दिस इंजनएक्स.const, ये उसका डायरेक्ट था. जो इंजनएक्स जब रन करता है तो इंजनएक्स सारा उसमें अंदर डाल देता है, और दूसरा उसमें एक const.d करके एक ऐसा डायरेक्टरी था जिसके अंदर में वी कैन पुट अ यूजर स्पेसिफिक फाइल्स. So sometimes you'll have directories like this as well. You'll not have the same as file name.d, but most of the time तुम्हारा file name रहेगा और उसको .d लगेगा, and this is going to be the directory. It's not going to be the file. इसके अंदर में हम लोग सारे फाइल्स डाल सकते हैं, ठीक है. तो that will be a custom file or user specific file. So if I need to control these things,
बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर अ स्पेसिफिक यूजर नाउ, ठीक है। तो मैं अगर कस्टम वे में कर रहा हूँ तो बेस्ट वे इज टू डू दिस हियर, राइट, बिकॉज ये फाइल इतनी दीज फाइल्स आर वेरी क्रिटिकल। अगर इफ यू डू एनीथिंग, तुम अगर कुछ सिंटैक्स एरर करोगे इसके अंदर, यू गोइंग टू ब्रेक द सिस्टम, ठीक है। तुम्हारा सिस्टम जो है ब्रेक हो जाएगा, क्रैश, ब्रेक द सिस्टम। तो तुम्हारा सिस्टम चले जाएगा, तुम कंपनी में हो तो फिर तुम्हारा जॉब भी खतरे में पड़ सकता है। तो इस फाइल को जब काम करोगे, वेदर यू आर क्रिएटिंग अ फाइल हियर और यू आर क्रिएटिंग द फाइल हियर, बिकॉज दीज आर वेरी सुपर क्रिटिकल। इसमें मिस्टेक हुई तो तुम्हारा सिस्टम का है, ठीक है, दैट वोंट कम अप अगेन, क्योंकि वो इसमें मिस्टेक हो गया तो नोबडी विल बी एबल टू रन कमांड एज रूट। तो और ज्यादातर सिक्योरिटी रीजंस क्या रहता है कि एसएसएच कभी भी रूट पे नहीं करते हम लोग, तो एसएसएच रूट पे कभी भी नहीं रहेगा। एसएसएच हमारा नॉर्मल एक यूजर पे रहेगा, और मैं यहाँ पे से रूट में स्विच ही नहीं कर सकता हूँ इधर से, ना मैं ये कमांड यूज कर सकता हूँ ना ये कमांड यूज कर सकता हूँ, बिकॉज द फाइल जो उनको कंट्रोल करती है वो फाइल में ही गड़बड़ हो गई है। तो ये कमांड नहीं होगा। सू बहुत सारे टाइम पे नहीं चलेगा, बिकॉज कोई रूट को पासवर्ड लगाता ही नहीं, राइट। ज्यादातर कंपनी में रूट में पासवर्ड नहीं लगा हुआ रहेगा। एक ऐसा अकाउंट बनेगा, बिकॉज दीज आर ऑल हैपनिंग फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। लिनक्स सिक्योरिटी अगर करेंगे, उसमें कुछ चीजें मैं बता दूंगा, बट वी वोंट बी डूइंग द सिक्योरिटी लेक्चर्स हियर, और एटलीस्ट इस टॉपिक के लिए, बिकॉज डेव सेकऑप्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो सिक्योरिटी का देखा जाएगा बाद में, एक कुछ सेशंस अरेंज कर दिए जाएंगे। बट लिनक्स सिक्योरिटी में वो चीजें तुमको पता चलेगी कि रूट में कि लिनक्स में लिनक्स की पार्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है। बट आई वुड इनकरेज यू गाइस कि तुमको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो गो एंड एक्सप्लोर द सिक्योरिटी एज वेल। लिनक्स में क्या 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 चीजें करनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो इफ यू मेक एनी मिस्टेक यू गोइंग टू क्रैश और ब्रेक द सिस्टम, और then you are done from their point. Nobody will be able to log in and it's gone. Now somebody will have to recover this. तो रिकवर करने के भी बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं, हम लोग एक दो कवर करेंगे। हाउ टू रिकवर दिस ऑन क्लाउड, तो अगर ये क्लाउड में रहेगा तो किस तरह से रिकवर किया जाएगा। जनरली आप किसी को डेटा सेंटर में जाना पड़ेगा और वहां से कुछ चीजें करनी होगी, बट क्लाउड के केस में वी कैन नॉट गो इनटू द डेटा सेंटर। बट बिफोर क्लाउड ऐसा रहता था कि कोई डेटा सेंटर में एक बंदा जाता था, सर्वर पे जाके वो माउस और कीबोर्ड लगाता था, फिर वहां पे जाके ट्रबल शूट करना स्टार्ट करता था। तो दैट्स द वे थिंग यूज्ड टू हैपन। बट क्लाउड में चीजें इंप्रूव हो गई है, तो देयर आर वेज टू फिक्स इट, बट दिस इज गोइंग टू क्रैश योर सिस्टम, और कोई भी लॉग इन नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारी एप्लीकेशन तो बंद हो जाएगी। हम लोग फिक्स तो कर देंगे उसको, लेकिन आउटेज आ जाएगा, डाउन टाइम आएगा, उतनी टाइम के लिए तुम्हारी सर्विस डाउन हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर द बिजनेस। सो जब भी इस पे करोगे तो बी वेरी केयरफुल। देयर आर फ्यू वेज टू डू इट। जो एकदम आसान वे है इज टू रन द vi sudo कमांड। ठीक है, ये क्या करेगा, तुमको मिस्टेक करने नहीं देगा। अगर तुमने मिस्टेक किया है ना तो वो तुमको बाहर आने ही नहीं देगा फाइल के। एंड दैट तो तुम कोई सी भी vi sudo करो। सो फार वी हैव एडिटेड द फाइल विद द vi, नाउ वी कैन डू दैट विद द vi sudo। ठीक है, तो vi sudo से करोगे तो तुम मिस्टेक करोगे तो तुमको बाहर ही नहीं आने देगा। तो दिस इज द रिकमेंडेड वे फॉर द फ्रेशर्स। सेकेंड वे that normally happens in production environment or in automation, because automation में तुम कर नहीं सकते, vi sudo is the interactive way to do that। ये हुआ इंटरैक्टिव वे में, जब जहाँ पे तुम इंटरैक्ट करोगे यू विल हैव टू इंटरैक्ट। बट हाउ डू यू डू दैट इन ऑटोमेशन, जब तुमको वो ऑटोमेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फाइल हियर, राइट, जो भी फाइल जो भी हमको करना है, क्रिएट इट इन द टेम्प डायरेक्टरी। तो ऑटोमेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डायरेक्टरी में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ ऐसा बनाएंगे। टेम्प डायरेक्टरी में आप नॉर्मल vi कमांड से उसका सिंटैक्स समझेंगे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद में टेम्प डायरेक्टरी में करेंगे। एंड देन देयर इज अ कमांड vi sudo में एक कमांड आता है जो वैलिडेट करने के लिए रहता है। तो चेक फाइल है, तो ये c फॉर चेक है, और ये फाइल को चेक करेगा, एंड देन वी कैन गिव दिस। ये सिंटैक्स वैलिडेट कर देगा, बोलेगा ठीक है एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन डू द mv। इसको हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देंगे फिर से sudo.d। और यहाँ पे एक और चीज इट्स आल्सो, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ परमिशन, एंड दिस फाइल नीड्स अ परमिशन ऑफ 400। यू कैन नॉट कीप एनी
period, right? So it always needs to be 400. तो ये कुछ this is the way to do that with the automation, जहाँ पे तुम automate कर सकते हो created in a temporary, because यहाँ पे तुम अगर syntax गलत भी करते हो तो क्या होगा कि तुमने अगर यहाँ पे बनाया तुम्हारा सिस्टम ऑफ हो गया और यू लॉस्ट द कनेक्शन विद द इंटरनेट की वजह से, तो तुम्हारी गलत फाइल यहीं पे रह गई अब वो, ठीक है। तो इसलिए गलत जो फाइल भी बनाना है परमिशंस के लिए, तो क्रिएटेड इन अ टेम्पररी डायरेक्टरी, देन उसका सिंटेक्स वैलिडेट करो, उसको मूव करो, उसकी परमिशन ये कर दो। दैट इज द ऑटोमेटेड ऑटोमेशन से करना है तो इस तरीके से, इंटरैक्टिव वे में करना है तो इस तरीके से, वी विल सी दैट लेटर, ठीक है। बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और मुझे ये कवर करना है। इसका सिंटेक्स का जो है उसके इसके जो अंदर के सिंटेक्स है फाइल में विल होपफुली कल देखेंगे हम लोग ये। अभी हम लोग यूजर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ यूजर रिलेटेड कमांड्स हैं, आउट ऑफ दैट एक मैंने तो बता दिया हूँ और भी कुछ 2-3 कमांड्स बताता हूँ। तो आईडी एक कमांड है जो हमको पता है, राइट। आई कैन यूज द आईडी कमांड ऑलवेज। और आईडी कमांड क्या करेगा, मेरा यूजर नेम और मेरा प्राइमरी ग्रुप और मेरे सारे सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री ग्रुप्स यहाँ पे ला के रख देगा, ठीक है। तो ये सारे मेरे सप्लीमेंट्री ग्रुप्स हैं जो ये कर देगा। आईडी इज वन ऑफ द कमांड। ज्यादातर तुम जब नेटवर्क डिवाइसेस पे कनेक्ट करोगे, मतलब प्रॉब्ली अगर कोई नेटवर्क यहाँ से करने वाला है तो नेटवर्क डिवाइसेस पे, राउटर पे, स्विचेस पे कनेक्ट करोगे, दोज आर आल्सो लिनक्स डिवाइसेस। तो वहाँ पे यू विल नॉट हैव, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा तुम्हारे पास में कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि तुम कौन सा यूजर नेम हो, और तुम साइंटिफिक और थोड़े से सीक्रेट लिनक्स पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी तुमको नहीं दिखेगा कौन सा ऑपरेटिंग कौन सा यूजर है। तो नॉर्मली पीपल यूज whoami इज द कमांड, और ये कमांड यूज कर सकते हो, तुमको बताएगा कौन सा यूजर है। सो फनी, यहाँ पर भी यूजर दिख ही रहा है, तो इस केस में नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। इफ यू वांट टू सी कौन कौन लॉग्ड इन है इसके ऊपर में, तो यू कैन शॉर्टन दिस कमांड whoami to who, तो तुमको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन कौन लॉग्ड इन है, कौन कहाँ से लॉग इन किया हुआ है, ठीक है। यू कैन जस्ट डू w, इट विल शो द सेम थिंग अगेन, बट दिस टाइम वो सारा बता भी देगा कि क्या क्या कर भी रहे हैं हम लोग। तो ये जो यूजर है लोकल एडमिन, इसने w कमांड यूज किया है, और ये वाला जो है यूजर ये सिर्फ बैश यूज कर रहा है, ठीक है। तो एवरी टाइम जब हम लोग व्हेन वी लॉग टू द, जब हम लोग सर्वर पे लॉग इन करते हैं तो हमको बैश मिल जाता है, हमको मतलब शेल मिलता है, ठीक है। एंड देयर आर 3 तरीके हैं उसके, हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों जो कमांड है वो नोट डाउन कर देता हूँ, बेनिफिट ऑफ द वीडियो। तो आईडी इज द कमांड, whoami इज द कमांड फॉर यूजर, who एंड w। ये सारे कॉमन कमांड्स हैं जो यूज किए जाते हैं यूजर मैनेजमेंट के लिए। एंड एक और कमांड है जो कि तुमको बता देगा कि कितने यूजर ने अभी तक इस पे लॉग इन किया है, ठीक है। तो ये कमांड क्या करेगा, सारे एक्टिव सेशंस बताता है, और इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं, इफ आई वांट टू सी द हु वाज द लास्ट यूजर जो लॉग इन किया था यहाँ पर, तो तुम यहाँ पे आके लास्ट कमांड से देख सकते हो कि लास्ट यूजर कौन सा लॉग इन किया था यहाँ पर। W कमांड से देख सकते हो, हु कमांड से देख सकते हो एक्टिव यूजर, W कमांड से देख सकते हो उसका क्या प्रोसेस वो रन कर रहा है, व्हाट इज द कमांड ही इज रनिंग। द हु कमांड से सिर्फ देख सकते हो कि कितने यूजर लॉग्ड इन हो रखे हैं, और हु एम आई से यू कैन सी दैट। सो ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिनक्स के लिए। एंड लाइक आई सेड, लिनक्स इज लाइक, हर कंपनी में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर लिनक्स के ही रहेंगे, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेवऑप्स, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि लिनक्स पे तुमको क्वेश्चंस आएंगे, और इसलिए लिनक्स पे हमारा फोकस है। जो लिनक्स से इम्पोर्टेंट चीज है और जो थिंग्स विच विल मेक योर जॉब इजी, ट्रबल शूट इजी, एंड ऑल्सो हेल्प यू क्लियर द इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। ओके, सो ये है। और दूसरा जो है बैश वाला है, जब यूजर लॉग इन करता है तो उसको एक जो प्रॉम्प्ट मिल जाता है। तो सिमिलरली अगेन सेम चीज, इसको इमेज को वापस लेते हैं, लेट्स यूज okay. Let's get rid of this, and for now we'll forget the permissions. So one, in order to use the resources, we'll be making the syscalls, okay। हम लोग syscalls यहाँ पे will do the syscalls। जब यूजर जब कोई भी यूजर लॉगिन करता है तो बाय डिफॉल्ट जो है उसको शेल मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज कर रहे हैं फेडोरा और डेबियन फैमिलीज के, लाइक रेड हैट, सेंटोस, उबुंटू,
वहाँ पे हमेशा विल गेट हम लोग को बैश मिलता है, बैश हमारा जो शेल रहेगा वी विल गेट दैट एज बैश। एंड देन वी बैश में इस शेल में हम लोग क्या करते हैं, हमारे सारे कमांड्स रन करते हैं लाइक ls और mv और cp जो भी मैंने रन कर रहा था। तो अभी फिलहाल दैट इज द वे आई वाज रनिंग। नाउ देयर आर कपल ऑफ अदर वेज दैट हम लोग syscalls वी कैन डू दैट। वन इज द ग्राफिकल वे जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, मतलब लिनक्स में 2000 बिफोर 2000 देयर वाज नो सच थिंग कॉल्ड लिनक्स डेस्कटॉप। कोई भी मतलब ग्राफिकल नहीं आता थे, एवरीबडी वाज डूइंग, सब लोग इस तरीके से काम करते थे। अब ग्राफिकल आ गया है तो दैट इज जो एक्स सर्वर आया है, एक्स सर्वर से वी कैन गेट द ग्राफिकल यूआई। तो हमको ग्राफिकल मिल जाता है लिनक्स में दिस। एक सर्वर में हमको फिर से टर्मिनल मिल जाता है एंड देन टर्मिनल पे वी कैन गेट द शेल। ठीक, तो वी हैव दिस एंड यहाँ पे फिर हमको शेल मिल जाता है, और जो भी शेल वो यूज कर रहा होगा मोस्टली बैश अगेन, जो भी बेस्ड ऑन डेस्कटॉप, बट वेरी रेयर फॉर अस राइट नाउ बिकॉज हम लोग एक सर्वर हार्डली यूज करने वाला है, क्योंकि क्यों नहीं आ रहा है इसको कलर। And then command, let's see here again. So direct the bash is what we use when we connect X server जो graphical रहेगा desktop वाला if you are using, and the another one more way is to use जो अभी तक तो हमने सिर्फ उससे कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, but that can also be used to leverage that same capability and SSH. We can run the commands directly using the SSH as well. तो यहाँ पे SSH daemon चल रहा है, SSHD, और यहाँ से हम लोग SSH जो क्लाइंट है वो यूज करके do that. I can run the command here as well. तो ये तो ये तो हमने देख लिया है एंड वेरी कॉमन वी विल बी यूजिंग दिस इज आल्सो समथिंग वी विल बी यूजिंग राइट। तो अभी तक हमने ये देखा नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। हमने अभी तक क्या किया था, वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी कमांड, तो इसलिए क्या किया उसने, हमको सीधा जब भी व्हेनेवर एसएसएच क्या करता है हमको बैश में लाके छोड़ देता है, और उसके बाद में हम लोग फिर कमांड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन। तो डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन ये है उसका कि इस कमांड को रन करते रहो लाइफ साइकिल। तो जब भी हम लोग एसएसएच करते हैं व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द सर्वर, हमको बैच में लाके रख देता है, ठीक है, उस पर जो भी यूजर हमने बोला है उस यूजर का जो भी डिफॉल्ट शेल होगा, तो दैट यूजर का जो डिफॉल्ट शेल रहेगा हमको उसमें लाके छोड़ देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी द बैच। और ये सेम कंसेप्ट इसमें भी रहता है कंटेनर में, एंड यू हैव टू रिमेंबर कंटेनर में मोस्ट ज्यादातर में बैच नहीं रहेगा, तो तुमको कंटेनर को रन करना है तो यू विल नीड सम काइंड ऑफ अ प्रोसेस। अब यहाँ पे तुमको VM तुम्हारा ऑलरेडी इट्स रनिंग, यू जस्ट नीड अ सेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम्हारा सेशन रहेगा। तो अभी तक हमने वही किया था, वी यूज्ड SSH एंड यूजिंग SSHD वी वर एबल टू कनेक्ट एंड हमको बैच मिल गया था एंड देन वी वर रनिंग कमांड्स फ्रॉम हियर ऑन। लेकिन अब लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे ऐसे तरीके से कमांड रन करते हैं इसको, ठीक है। तो आई विल डू एग्जिट विच इज टू गेट आउट ऑफ द सर्वर। अब मैं सर्वर से बाहर आ गया हूँ राइट, आई एम नॉट ऑन द सर्वर एनीमोर, लैपटॉप नाउ, ठीक है। तो द वे जिस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा था ऐसा, अब मैं यहाँ पे कमांड सेंड करता हूँ उसको। तो व्हेन आई डू ls तो वो क्या करेगा, वहां पे से दिखा दिया, बिकॉज कुछ था नहीं वहां पर इसलिए कुछ आया नहीं। तो लेट्स डू दिस lsla, जो कि हमको क्या करेगा, हिडन फाइल्स दिखाएगा, ठीक है। तो देखो ये सर्वर पे से दिखा रहा है, लुक एट द यूजर, लोकल एडमिन यूजर आई डोंट हैव, इफ आई रन दिस ls-l कमांड तो नहीं आएगा। तो दैट इज द वे you can execute command on the remote host, one of the way, and one of the way to do pretty much send the sys calls. So यहाँ से also I can pretty much manipulate everything. I can print the host name. मैं बोल हेलो, रुको एक मिनट। Please mute your. You don't have question. I don't know why you guys are unmuting. Just raise your hand, right?
because it creates unnecessary noise and disturbs the class as well. So this is the way, right? I can use any command that I can think of. I can delete the file, I can create the file, I can run the service, I can stop the service, as long as I have the proper permissions, right? Which we will see. So everything that this user will be doing, that boils down to the permission that the process is probably running. So we'll see that permissions as well. And that permissions can be controlled with this sudoers most of the time. That's what we will be do, because root has permission for everything, and for us to control the permissions we will be using sudoers. So there are a couple of ways, there are couple of things now. One, जो मैंने बार बार तुमको बोला भी हूँ कि ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए बात, इन ऑर्डर टू कनेक्टिविटी। एक चीज तो मैं डालने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे ट्रबल शूटिंग के ये चीज। दूसरा कि बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी की भी चीज आनी चाहिए, इज टू ऑथेंटिकेट के ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, जिसको ऑथ एन बोला जाता है एंड इसको ऑथ जी बोला जाता है। तो ऑथेन इज फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या था, जो हमने प्राइवेट की से लॉग इन किया, राइट? सो दैट एक्चुअली हमारा ऑथेंटिकेशन उसने वैलिडेट किया। ऑथराइजेशन क्या होगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो रहेगा ऑथराइजेशन करेगा, जो परमिशन, मतलब मैं सोसाइटी में आया हूँ कार्ड दिखा के, या हॉस्टल में आया हूँ आईडी दिखा के, तो मेरा आईडी क्या था, -i हमने यूज किया था, दैट वाज माय प्राइवेट की, राइट? तो वो वहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेशन कवर हो गया। अब मैं लॉग इन करके मैं क्या रन कर सकता हूँ, कैन आई डिलीट द फाइल फ्रॉम द, यहाँ पर क्या कैन आई डिलीट द फाइल, कर्नल फाइल्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ, या ऐसी फाइल जिसको जो रूट ओन्ड बाय रूट है और प्रोसेस क्रिटिकल से, बिजनेस क्रिटिकल से, कैन आई डिलीट दोस फाइल? दैट विल बॉइल डाउन टू माय परमिशंस, राइट? तो दैट इज ऑथराइजेशन। सो कहीं पे भी मतलब तुम लॉग इन करो, अभी यहाँ पर भी मैंने क्लाउड पर लॉग इन किया था, राइट? यहाँ पे मैंने लॉग इन किया बिकॉज यहाँ पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, आई वाज ऑथेंटिकेटेड, राइट? मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। अब यहाँ पे मैंने सर्वर बनाया, तो दैट बॉइल्स डाउन टू माय परमिशंस, मेरा ऑथराइजेशन पे चले गया हूँ। अगर मेरे पास परमिशन है तभी मैंने बना पाया हूँ, मेरे पास परमिशन नहीं रहती तो मैं नहीं क्रिएट कर सकता था ये चीज। तो ये हर जगह पे कॉमन रहेगा और नेचुरली तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए जब भी व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू सम डिवाइस, कनेक्टिंग टू एनीथिंग, because that is very common and it is going to be everywhere, right? तो तुम्हारे दिमाग में एकदम नेचुरली फिट हो जाना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ये रहना चाहिए, वैसा हो रहा है तो वो रहना चाहिए। तो उस तरीके से तुम्हारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए इस मामले में। और along with these commands, जो यूजर मैनेजमेंट के लिए कमांड्स है हमारे पास में, we have यूजर ऐड, ये पूरा एक स्वीट है जिससे हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, यूजर मॉड, यूजर डेट, ठीक है? तो यूजर कंट्रोल करने के लिए वी हैव दिस 3 कमांड्स, और ये सारे लो लेवल यूटिलिटीज हैं, बहुत ही इससे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने यूजर ऐड से करके दिखाया था, राइट? तो इसमें जब भी हम लोग यूजर ऐड करते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स हम लोग को देनी पड़ती है, उसका फुल नेम, उसका मतलब होम डायरेक्टरी क्या रहना चाहिए, पासवर्ड क्या रहना चाहिए, उसको शेल कौन सा देना चाहिए, तो सारी चीजें जो है उस यूजर को हमको देना पड़ता है जब भी हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे तो। और यूजर ऐड में अगर तुम सिंटैक्स देखोगे तो इट्स प्रीटी सिंपल, यू गिव अ यूजर ऐड कमांड और तुम यहाँ पे ऑप्शन दो विच इज ऑप्शनल, एंड देन लॉग इन, जो कि नथिंग बट अ यूजर नेम। तो यहाँ पे क्या देना है, यूजर नेम देना है। So if I need to create user add, I can just create user add as John. ये ऐसे यूजर कर देता हूँ। अब ये यूजर में क्या करेगा, उसका कुछ भी नहीं बनाएगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी, लाइक उसका उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज होम डायरेक्टरी, बिकॉज हम लोग नॉर्मल यूजर बना रहे हैं तो होम डायरेक्टरी उसकी वो नहीं बनाएगा, क्योंकि यूजर ऐड कमांड में सारे ऑप्शंस स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट बहुत ही कम चीजें लेता है, वो स्केलेटन वगैरह भी नहीं लेगा। we'll see that skeleton. One more difference with these two between these two types of account is, so now you understand what is the shell or what is the bash, right? So जो हमारा normal user account रहेगा, इसके अंदर में login shell रहेगा हमेशा, always going to be, user account will always be with the login shell and home directory, ठीक है? But this here they will lack the login shell. Chances are very high कि तुमको login shell नहीं रहेगा, because सर्विस अकाउंट बना रहे तो उसका खाली पर्पस है कि भाई सर्विस रन करो, उसको लॉगिन, उसको शेल देने की जरूरत नहीं है कि जाके कोई लॉगिन करे उसके ऊपर।
और उसको अगर शेल नहीं दे रहे हो तो होम डायरेक्टरी देने की भी जरूरत नहीं है। तो इन केस में विल ऑलवेज हैव द लॉगिन शेल यूजर अकाउंट में, राइट, दैट इज दिस, जहाँ से हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें हम लोग को पास में लॉगिन शेल नहीं रहेगा। ओके, तो वी कैन रन दिस विदाउट शेल। तो सर्विस अकाउंट का ज्यादातर वही रहेगा कि तुमको लॉगिन शेल नहीं दिया जाएगा, और इस केस में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लॉगिन शेल दिया जाता है। अलॉन्ग विद दिस स्वीट एक और कमांड है, दैट इज ऐड यूजर। सो ऐड यूजर इज गोइंग टू, ऐड यूजर क्या करता है, यूजर ऐड कमांड यूज कर रहा है। इट्स जस्ट अ यूजर फ्रेंडली वे टू डू दैट। इसमें जो जो ऑप्शंस नहीं लेता ना, यहाँ पे सारे ऑप्शन ले लेगा वो, हर पूरा एक फील्ड ये करेगा। तो ऐड यूजर में एक करके बताता हूँ तुमको। ऐड यूजर में मैंने चलो जॉन डो ऐसे एक यूजर, तो उसने वो देखो सब कुछ कर रहा है। उसने बोला कि एडिंग यूजर, एडिंग टू न्यू ग्रुप, अगर मैं नहीं दूंगा तो वही ग्रुप में उसको ऐड कर देगा। तो उसने ग्रुप का नाम भी जॉन डो ही लिया है इसके अंदर में। होम डायरेक्टरी उसकी बना दिया है। स्केलेटन से सारी फाइल्स भी कॉपी कर दिया है। तो स्केलेटन ऐसी डायरेक्टरी है, जब भी एक नया यूजर बनेगा ना तो ये डायरेक्टरी है, इसमें जो भी फाइल होगी वो सारी की सारी फाइल्स उस यूजर के होम डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगी। तो इफ यू सी कौन सी फाइल कॉपी होती है, राइट, तो मैंने एक यूजर बनाया, जो गूगल को बोला था मैंने, तो गूगल ने मेरे लिए यूजर बनाया था। तो यू सी ऑल दिस फाइल्स हैव बीन कॉपीड। SSH इज द फाइल जो SSH कमांड रन करने से हुआ है, बट ये सारे फाइल देखो यहाँ पे कॉपी हुए हैं। और ये भी आई थिंक स्केल डायरेक्टरी में जो जो फाइल रहेगी वो सारी फाइल वहाँ पे कॉपी करके ले लेगा वो। तो बैश हिस्ट्री हो गया, बैश लॉगआउट, बैश RC एंड प्रोफाइल, ये जो कुछ चीजें हैं ये गूगल ने बाद में किया है। इट्स नॉट एज अ पार्ट ऑफ यूजर क्रिएशन। तो वो उसने यूजर ने हमको, गूगल ने जो लॉगिन करने के लिए दिया है, तो वो सारी चीजें SSH तो हमको पता है। और ये GNU PG है, तो वी नो व्हाट इज GNU एज वेल, इज द बंच ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स। तो ये इंक्रिप्शन के लिए यूज हुआ जाता है, यूज किया जाता है। तो आगे इंक्रिप्शन में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एंड देन यूसेज भी अलग अलग वेरी करेगा बेस्ड ऑन व्हाट सर्विस और व्हाट एप्लीकेशन वी आर यूजिंग। और कैश इज जस्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, तो ये गूगल के क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर हम लोग जाके देखेंगे स्केल डायरेक्टरी में, तो वी आर लाइकली टू सी 1, 2 एंड 3, ये 4 फाइल दिखेंगे। तो वो सारी फाइल भी वो कॉपी कर रहा है हमारे इस होम डायरेक्टरी में। ठीक है, इज आस्किंग फॉर मी पासवर्ड, मैं इसको पासवर्ड नहीं देता हूँ, ठीक है, लेकिन पासवर्ड मांग के ही रहेगा। नहीं दिया मैंने पासवर्ड, ठीक है, तो मैंने पासवर्ड स्किप किया हूँ। अब वो फुल नेम मांग रहा है, तो उसको मैं फुल नेम देता हूँ। रूम नंबर स्किप इट, वर्क फोन स्किप कर देते हैं, होम फोन भी स्किप, अदर स्किप, ऑल दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, यस। तो यहाँ पे कैसे एक यूजर फ्रेंडली गाइड दिया उसने मुझे, इंटरैक्टिव वे में सारे ये दिया। तो दिस इज गुड टूल अगेन फॉर इंटरैक्टिव वे लाइक दिस वन, जो यहाँ पे मैंने बताया था। जो हमने यहाँ पे देखा इंटरैक्टिव वे में, क्योंकि सारे जो जो मतलब ऑप्शंस यू शुड कंसीडर वहाँ पे आने चाहिए, सब ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पर। लेकिन व्हेन यू डू द ऑटोमेट, यू डोंट वांट दैट, राइट। तुम ऑटोमेशन में तुमको तो ऑटोमेशन में पीपल विल यूज ऑफन दिस, जहाँ पे हम लोग सारे ऑप्शन स्पेसिफाई करेंगे खुद से। और अगर हमको इंटरैक्टिव वे में करना है तो वी कैन यूज दिस। तो ये क्या है, दिस कमांड इज यूजिंग दिस कमांड ओनली, ये यही कमांड यूज करता है। ये पर्ल एक रैपर स्क्रिप्ट है, पर्ल में लिखी हुई, और जो कि अवेलेबल है, पर्ल स्क्रिप्ट है ये, इट्स रैपर स्क्रिप्ट, जो कि इसी को यूज करती है। अगेन इट यूज, ये इसी कमांड को यूज कर लेती है, ठीक है। तो इसमें जो जो ऑप्शन आए थे ना, तो वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यूजर ऐड में नहीं आएगा। तो यूजर ऐड में हेल्प करके देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर मुझे सेम ये जितने यहाँ पे दिया था उसने कि यूजर का नाम तो हमने दे दिया था, ग्रुप भी हमने दे दिया था, तो यहाँ पे सारे हैं। यूजर नेम तो हमने स्पेसिफाई कर रहे हैं बिकॉज यूजर ऐड है, ऑप्शन और लॉगिन, राइट। ये तो उसका ये उसका सिनॉप्सिस है। मैन करूंगा तो सिनॉप्सिस वाला पेज भी आ जाएगा, बट कुछ कुछ टूल्स के लिए मैन और हेल्प दोनों है। तो मैन में ये सिनॉप्सिस है, जैसे यूसेज उसका इस तरीके से मुझे कमांड यूज करना। फॉर ग्रुप्स यहाँ पे -G, इसमें भी ग्रुप लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बोलता है कि नेम और ID ऑफ द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द न्यू अकाउंट। अगर इसको मैन में जाके देखेंगे तो हमको वहाँ पे और थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर हमने ये प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो यूजर नेम को ही ग्रुप नेम बना देता है, दैट विल बी द प्राइमरी नेम। -G जो है, दिस इज द सप्लीमेंट्री ग्रुप्स। अगर मुझे और ग्रुप्स इसमें ऐड करने हैं अदर देन प्राइमरी, दैट आई कैन डू। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन उसका पासवर्ड था, तो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं सारे ऑप्शन। स्केलेटन डायरेक्टरी जो है, ये यहाँ पे स्केलेटन डायरेक्टरी के लिए दिया गया है, होम डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे दिया गया है।
तो आई कैन गिव ऑल दीज ऑप्शंस एंड गेट इट डन एज वेल। तो यहाँ पे एक बस वो रैपर स्क्रिप्ट पर्ल में लिखा हुआ है एंड दैट इज डूइंग द थिंग फॉर अस। और ये जनरली अवेलेबल है सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस पे, यूजर ऐड एंड ऐड यूजर। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा कमांड है वो जो गाइड करता है अपने को, ऐड यूजर है या यूजर ऐड है। तो दो तरीके से मैं इस तरीके से रिमेम्बर याद रखता हूँ, बिकॉज देयर इज नो सच कमांड कॉल्ड डेल यूजर। जो ये पूरी स्वीट अगर तुमको याद है ना, यूजर ऐड, यूजर मॉड, यूजर डेल, तो यू नो कि कौन सा कमांड कौन सा है। तो जो स्वीट में अवेलेबल है यहाँ पे, तो दैट कमांड इज अ लो लेवल यूटिलिटी कमांड्स, राइट? दीज आर लो लेवल यूटिलिटी कमांड एंड गुड फॉर ऑटोमेशन। तो हम लोग जब शेल स्क्रिप्ट सीखेंगे आगे, दैट इज व्हाट वी आर हेडिंग फॉर आफ्टर दिस। तो लो लेवल कमांड्स हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन में वी वांट एवरीथिंग ऑटोमेटेड। हम लोग इंटरैक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे, बिकॉज ऑटोमेशन का मतलब है कि कोई इंसान वहाँ पे अवेलेबल नहीं है चीजों को कुछ करने के लिए, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए वहाँ पे। तो लो लेवल यूटिलिटीज जो है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दैट। तो ये सारे लो लेवल यूटिलिटी में तुमको इस तरीके से याद रखना है, यूजर ऐड, यूजर डेल, यूजर मॉड। ओके, यूजर ऐड लो लेवल है, जिसमें सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, मुझे सारे ऑप्शंस अप्लाई करने पड़ेंगे, बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी ऑप्शन नहीं लेगा। ऐड यूजर सारा कर देगा, राइट? दैट इज द वन वे। दूसरा ये कि जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो वॉवेल्स, ज्यादातर लोग एग्जांपल वॉवेल्स का देते हैं कि वॉवेल्स में ए फर्स्ट आता है, तो दैट इज उस तरीके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कौन सा क्या है। तो मैं जो ज्यादातर अल्फाबेटिक और ये स्वीट वाले तरीके से याद रखता हूँ, दैट इज द इजी वे टू रिमेंबर। एंड तुम लोग उस तरीके से याद रख सकते हो कौन सा कमांड क्या है, ठीक है? एंड कमांड ऐड करने का, कमांड मॉडिफाई करने के सारे सबके मैन पेजेस हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। We are running out of time now, so I think we've covered good यूजर का, और जो यूजर का जो शेल रहता है, we उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। We'll create the users and then we'll see few more things and we'll explore this file as well, जहाँ पे हम लोग को ये करेंगे। अनिस का भी वर्किंग कल देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो अगर कुछ क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। If not, then you can still ask on the group, and that's what I encourage. अगर तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम लोग को सबको सब समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो विच मीन्स कि मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग? मतलब यू शुड आस्क क्वेश्चन। और एक वो भी रीजन रहेगा कि यू डोंट केयर। ज्यादातर फ्री में वैसा भी एक मेंटालिटी रहता है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़। डोंट टेक इट दैट वे, ट्राई टू इसको ये करो, यूज करो उसको। ओके, ठीक है। क्वेश्चन है आई सी। ओके वैभव, यू आस्क, यू रेज द हैंड फर्स्ट। Sir, we can call add user as a like alias, right? Yes. So add user is like a alias, not it's exactly, it's a wrapper script, right? Alias में क्या होगा कि तुमको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। और alias में you can only create मतलब you cannot make it dynamic। यहाँ पे सारे तुमने बहुत सारे चीजें डायनामिक किए, तो इट्स द टर्म जो यहाँ पे यूज होता है, रैपर स्क्रिप्ट वाला टर्म यूज करना सही रहेगा। एलियस जैसा कंसेप्चुअली तुमको समझना है तो समझो, लेकिन लिनक्स में जो एलियस है विच इज वेरी स्टैटिक, एक बार तुमने एलियस में जो डाल दिया दैट ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक, मुझे अगर यहाँ पे एलियस कमांड रन करता हूँ, so these are the current alias available for me। जब भी मैं ll कमांड यूज करता हूँ तो बेसिकली ये रन होता है, राइट? whenever I run the ll, जब मैं ls रन करता हूँ तो कलर आ रहा है, and that's the reason why I'm getting the color every time। now I can add another alias like this s, और इसको ले लेते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो s इक्वल टू, तो इफ यू रिमेम्बर ये क्या था, मैं कनेक्ट इसको लिख देता हूँ, गो टू लिख देता हूँ, और यहाँ पे एलियस में ये डाल दिया। अब ये स्टैटिक है, मैं इंटर कर देता हूँ, और इफ आई रन गो टू, आई विल कनेक्ट डायरेक्टली टू दिस वन, ठीक है? अब इसमें व्हाट इफ आई वांट टू कनेक्ट सम अदर सर्वर, आई कैन नॉट, बिकॉज इट्स स्टैटिक। यहाँ पे अब चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये इसमें लिमिटेशन यही है, आई कैन एग्जिट। कल को मेरा प्राइवेट आईपी चेंज हो जाता है, मुझे फिर से आके एलियस बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज एलियस का ये है कि वो सिर्फ स्टैटिक कंटेंट रखेगा उसके अंदर में, एंड एलियस, बट विल टॉक अबाउट एलियस एंड विल प्ले अराउंड एलियस एज वेल लेटर once we are done with this।
तो alias बोलना I think technically not right, but conceptually if you want to understand that's okay. But you should call it a wrapper script because it's dynamic. You can control, you can add a lot of options. So alias में तुम्हारा जो है static way में ही रहेगा. I have created a go-to that will always connect here. What if I want to connect to some other server? Can I add that flexibility here in the within the go-to? So that is not there. ठीक है. Any you also have question, Miraj? Yes, sir. Sir, can we directly create a group and assign permissions to it and then add users to it? Yes. Users to that group. Yes, we can, and that is the way to do it. That is the good way to do that. And let's run the go-to command. So right now, that's what Google has done actually. If I do ID, right? So ID is going to list my ID and group ID and supplementary ID. So I have the sudo permissions. I can run this command sudo -i, and I have I've changed it to root, right? I'm able to turn myself into root user. And एक अलग चीज है यहाँ पे password नहीं पूछ रहा है, which we will see that tomorrow. But ये मिल गया मुझे, and that is actually I'm getting because I'm added to this group right now. तो Google ने क्या किया है, इस ग्रुप को सारे sudos पर, क्योंकि Google ने ऐड किया है ना इस अकाउंट को, तो Google ने मुझे इस ग्रुप का पार्ट बना दिया है और इस ग्रुप के पास में सारे एक्सेसेस हैं. तो I'm actually inheriting that सारी permissions, right? So that is the normal way to do it, and that is possible. We will see that tomorrow. Okay, sir. Okay. Any other question? Hello. Yes. Yeah. Hello. I do have a question. Yes. Generally, we use sudo su to switch to root user, right? Yes. Sudo su. And You can sudo. use right. You can. So again, the command you are, I mean, that is not generally. That is maybe you are using, right? But the recommended way is to use sudo to convert. You can use that way. It's nothing but a root. You can use sudo su, but the command you are using is sudo, and within the sudo you are actually supplying su as a flag or as an option. So we will see that difference. I'll explain the difference between sudo and su and when to use that. So tomorrow, so you'll get your answer. Yeah, And sure. Okay. that is a preference. I prefer to do this way. You can use that way, but I know I always use this, and I'll tell you the benefit as well why we should use this, and what are how this is better than using sudo su and then adding the hyphen to sudo su dash as well command. So we'll see that, right? And Okay. people Okay. have Okay. Okay, no problem. You have one more question, Viraj? I see your hand. Yes, sir. Sir, can we give any user elevated user permissions using the sudo command? So in Linux, that's how it works, right? So in Linux, everything is from the sudoers file. Now you can give a group a sudoer permission and then add the user to that. That way, user will inherit, or you can directly give the user permission to that, right? So that's the way to give the elevated permission. So when we talk about elevated permission, is basically we are talking about super permissions, all the permission which only root has. So उसको कैसे देना है हमको, तो ये यहाँ पे हम लोग और डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे सारे मतलब permissions हैं, and that permission we will be controlling either with the sudoers or sudoers.t file, और उसको हम लोग इधर ग्रुप में ऐड करें या उससे करें, तो दैट जो हम लोग ग्रुप में ऐड कर रहे हैं दे रहे हैं, दैट इज द एलिवेटेड ही परमिशन दिया जा रहा है उसको हम लोग अदर परमिशन दे रहे हैं कि जस्ट अदर देन उसकी होम डायरेक्टरी जो भी रहती है यूजर की, कहाँ यूजर का जो भी होम डायरेक्टरी रहेगा, अदर देन हिज होम डायरेक्टरी व्हाट एल्स ही कैन डू, बिकॉज नॉर्मली नहीं रहती वो परमिशन, और वो हम लोग उसको सुपर परमिशन देनी पड़ती है ताकि वो किसी दूसरे यूजर की होम डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस कर सके, कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ चेंज कर सके, और लिनक्स की जो भी फाइल सिस्टम की हायरार्की है वहां पर भी कुछ भी उसको चेंजेस करना है, तो दैट्स समथिंग यू कैन डू देयर एज़ वेल. ओके सर. ठीक है, परमिशंस रिलेटेड जो है ना, वी आर गोइंग टू सी दिस इन प्रैक्टिकल, होपफुली दैट विल क्लियर योर कांसेप्ट्स बेटर.
and then we can discuss tomorrow. So I think I see a lot of questions for tomorrow that needs to be answered, and we will go through those. Okay. Yes, Gufran. I have a question before as you talked about root. तो जैसे कि मैं यूजर क्रिएशन किया इस इंस्टेंस पे, तो जैसे sudo su कमांड चलाते हैं तो डायरेक्टली रूट में चले जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें पासवर्ड सेट नहीं होता है, तो कैसे पासवर्ड सेट कर दे रूट में? तो वो भी अभी भी यहाँ पर भी वही हुआ है और ये नहीं हुआ, राइट? और मैंने बोला अभी कि दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग इट फ्रॉम हियर। यहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल किया जा रहा है, और वो कल मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से किस तरह से उन चीज़ों को किया जाएगा। तो विल सी के पासवर्ड यहाँ पे क्यों नहीं पूछ रहा है, जो तुमने sudo su किया, मैंने भी sudo i किया, मुझे भी पासवर्ड नहीं पूछा उसने। We'll see that tomorrow. Okay. That question also will be answered when we do the practical. ठीक है, any other question? Okay, ठीक है, if there are no questions, let's wrap this up. And again, like I would encourage, there are only handful of people that are trying to get involved or asking, which I would like to say everybody should do. Everybody should ask question and try to understand. If you don't understand, like कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं है, तुम्हारा डाउट अगर अपने पास ही रखोगे तो अपने पास ही रहेगा। डाउट को क्लियर करना है तो सामने लेकर आओ। Anyway, ठीक है, let's connect tomorrow, and in the meantime go through the other videos, practice, make your understanding better, because now we are moving on and foundation clear नहीं रहेगा तो आगे फिर चीजें नहीं, अगर फाउंडेशन ही नहीं सही रहेगा तो बिल्डिंग गिरने वाली है। ठीक है, तो इसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। Okay then, thank you everyone, let's meet tomorrow. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you.